Good morning, everybody. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Amandeep Singh. Morning. I'm audible. Good morning, sir. Yes, you are audible. Morning, sir. You are audible, sir. जैसे ही अमनदीप जी ज्वाइन करते हैं, just let me know. I will start the session. I am driving also, so I will start it this way directly also. Sir, I'm already in. You are in already. Okay. Good morning, Kamal sir. Morning. Very good morning पवन to सर, you. मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ. आप please. मैनेज करना. मैं अंदर ही हूँगा. मैंने कार के साथ अटैच किया हुआ है फोन को. So Yes, please. we will continue. So Okay. Okay, sir. Okay. कोई बात नहीं. okay. Good morning, everybody. This is a session on cryptocurrency. Mr. Amandeep Sota is from BitAU, is a new generation crypto coin which has been launched recently. I सर आपकी आवाज कट रही है. Not got it. और सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर. एक second, wait. अब आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है Yes, sir. You are audible now. Okay. Now, good morning, everybody. I met Mr. Amandeep Sota in one of the webinars he had organized in Amritsar, and I found his knowledge on crypto to be very good, and why crypto is going to be the future of the currency in the coming years, and what is mining in knowledge and everything he will be sharing. Also, he will be sharing the launch of a new Bitcoin, which is in the second part of its leg. And the details of it will be shared with you in the later half of the session. Since I'm driving today, the host for the session is going to be Mr. Pavan Pava and Madam Rabia. Both will be managing the show. We have two stalwarts from the crypto world, from the medical fraternity, Dr. Ravinder Malhotra and Dr. Ankush Jairath. As far as I know, these are the two persons who have in-depth knowledge about. And I welcome both of them in the sessions also. And I will request Amandeep ji to start with the presentation. Yes, first of all, thank you very much, sir, Dr. Saab. Dr. Kamalji ji, so nice for you. Thank you for being with us here, and thank you for giving me valuable time over here. First of all, I will request you to make me co-host so I can share a presentation over here. You are already the host. Okay, thank you so much. Okay, so welcome all on the platform of Dr. Kamalji ji. I request and I welcome to all, and I request you to please give your valuable time over here as requested by Kamalji ji. This is the meeting schedule is maximum 40 minutes, so this is very valuable, and I'm assured from my side that definitely this is investment on your side and my side on this investment. So I will start with the presentation over here. Let me start with the presentation. Okay. Could you please confirm that the screen would be changed?
पवन जी, स्क्रीन चेंज हो गया? Yes, sir. Okay, good. So myself Amandeep Singh and belong to district Hushiyarpur and मैं क्रिप्टो करेंसी में 2012 ऑनवर्ड्स काम कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस और आईटी का है, तो दैट इज द रीजन कि मुझे इसको समझने में अर्ली इरा में बहुत कम टाइम लगा और उसके बाद 2013 ऑनवर्ड्स मैं एज ए ट्रेनर इन क्रिप्टो करेंसीज के रूप में वर्ल्ड वाइड काम कर रहा हूँ। तो आज हम एक 9th जनरेशन क्रिप्टो करेंसी जो BitAU के नाम से 1 साल पहले लॉन्च हुई है, कल इसका एनिवर्सरी है, तो इसके मंच के माध्यम से आज हम क्रिप्टो करेंसी को जानने की कोशिश करेंगे। सो बिट स्टैंड फॉर बिटकॉइन एंड AU स्टैंड फॉर ऑरम गोल्ड। So this is the first cryptocurrency in the world that is backed by gold. How gold backup mechanism works, ये हम आगे जानेंगे। ये एक डिस्क्लेमर है कि दिस इज द इंफॉर्मेशन जो हम आपको शेयर कर रहे हैं, ये क्रक्स है पिछले 10 साल के बिटकॉइन के इतिहास का, और इन्वेस्टमेंट से पहले आप इसकी जो भी इफ एंड बट एंड प्लस एंड माइनस सारे डिस्कस करने के साथ पूरी नॉलेज लेने के बाद आप इसमें कंसिडर करें आगे। एंड दिस इज द स्लाइड एवोल्यूशन ऑफ करेंसी। इस स्लाइड के ऊपर हम क्रिप्टो करेंसी को समझने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग में से बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं पहले से, राइट, सुनते हैं और देखी भी है, मोस्ट प्रोबेबली आपने इसमें पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। बट आज थोड़ा मैं चाहूंगा मैं अपने माध्यम से आपको इसके बारे में बताऊं। तो आप स्लाइड देख रहे हैं कि आज डेट है ऑलमोस्ट 13 मार्च 2022 एंड वी आर डिस्कसिंग क्रिप्टो करेंसी। तो आज क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर करेंसी जो हमें बताया जाता है। अब इट्स एडवांस वर्जन ऑफ करेंसी, जो करेंसी हमारे पास ऑलरेडी है पेपर नोट्स लाइक। तो एडवांस वर्जन लाइफ में तब आता है जब पहले वर्जन में कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन नए रूप में आता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक सोल्यूशन के रूप में आई, जो करेंसी में सोल्यूशन है उसके रूप में आई। बट प्रॉब्लम ये है कि हम जब सब लोगों को ये नहीं पता कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये किस चीज का सोल्यूशन है। तो कहावत ये है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार क्यों हुआ और जिस इंसान ने क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया वो आज तक इनविजिबल क्यों है, ये दो क्वेश्चन के आंसर हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो फिएट करेंसी से हम लोग क्रिप्टो करेंसी में गए, मेटल कॉइन से हम लोग फिएट करेंसी में गए, बार्टर एक्सचेंज से हम लोग मेटल कॉइन में गए। तो दिस इज एवोल्यूशन ऑफ करेंसी के जब जब हमें ड्यूरिंग ट्रेड कुछ प्रॉब्लम सामने आई तो हम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के रूप में एडवांसमेंट करते गए किसी ना किसी रूप में। तो ये जनरेशन जो क्रिप्टो करेंसी का इतिहास हम स्टार्ट करें तो 4 युग हमारी जिंदगी में हुए हैं। पाषाण युग जिसको स्टोन एज बोलते हैं, जहां इंसान ने आग की खोज की। उसके बाद एग्रीकल्चर युग, जहां इंसान ने एग्रीकल्चर या प्रोडक्ट्स को उत्पन्न करने की खोज की। उसके बाद इंडस्ट्री युग आया, जहां प्रोडक्शन लाइन के बारे में बात की गई। और आज हम लोग जी रहे हैं आईटी युग में, इंफॉर्मेशन एज में। तो पिछले 20 साल में वही लोग अमीर हैं जो इंफॉर्मेशन एज का काम कर रहे हैं, चाहे वो Amazon है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे वो बिल गेट्स है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम कर रहे हैं और अमीर हो रहे हैं। तो फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो एज आने वाला है। अब 2030 तक जो मिलियनर ट्रिलियनर बनने वाले हैं वो क्रिप्टो एज में बन रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है क्रिप्टो है क्या, इसका बेसिक्स क्या है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा क्रिप्टो के ऊपर जो डिसीजन है वो कॉन्क्रीट हो सके, परफेक्ट हो सके। सो आज की सबसे बड़ी एग्जांपल आप देख सकते हैं बाइनेंस एक आज वर्ल्ड की लीडिंग एक्सचेंज है, जिसके जो मालिक हैं वो आज से 7 साल पहले किसी रेस्टोरेंट में काम करते थे, लेकिन आज उनकी जो नेटवर्थ है वो इंडिया के 2-3 बड़े अमीर लोगों की कुल नेटवर्थ का भी कंबाइंड से भी ज्यादा है। तो हाउ इज द वर्क, ये कैसे काम करा कि इंसान एक छोटे से पूंजी से इतना ज्यादा अमीर हो गया, उसकी वैल्यूएशन, उसकी कैपिटल कैसे बढ़ी। तो हम स्टार्ट करते हैं बार्टर एक्सचेंज से। तो सबसे पहले जब एग्रीकल्चर एज में इंसान ने प्रोडक्शन स्टार्ट की तो प्रोडक्शन करने के बाद उसके पास सरप्लस आया। तो आज की डेट में आप सब लोग ट्रेड करते हैं, आपको पता है कि इंसान ट्रेड पे जब जाता है जब उसकी जेब में सरप्लस होता है। तो हमारे पास अगर 10 रुपए या 1 लाख रुपए या 10 करोड़ रुपए सरप्लस है, हम उसको ट्रेड पे लेके जाएंगे। हैंड टू माउथ लोग ट्रेड पे कभी नहीं जाते, राइट। तो दैट इज द रीजन के एग्रीकल्चर एज से पहले लोग, इंसान की जो नेचर थी इस धरती पे वो अदर क्रिएचर की तरह ही थी कि उसको सिर्फ जीना था। तो ट्रेड के बारे में उसने सोचा नहीं, लेकिन जब उसने प्रोडक्शन किया तो फिर ट्रेड के बारे में सोचा। कैसे सोचा, मान लीजिए मैंने 1 एकड़ में गेहूं पैदा किया, आपने 1 एकड़ में कपास पैदा किया,
तो आपके पास कपास सरप्लस हो गया, मेरे पास गेहूं सरप्लस हो गया, तो हमने सोचा इसको हम मार्केट में एक्सचेंज कर लेते हैं, इसके बदले में कोई और चीज ले आते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो जब हम मार्केट में एक्सचेंज करने के लिए गए, तो उस टाइम जो मॉडल था एक्सचेंज का वो ये था कि एक हाथ ले लो दूसरे हाथ से दे दो, मींस वेट मैनेजमेंट, जितना वेट एक हाथ से दोगे उतना वेट दूसरे हाथ से मिल जाएगा, चाहे प्रोडक्ट और कमोडिटी कोई भी हो। तो जब गेहूं को कपास के साथ एक्सचेंज किया गया तो एक बोरी गेहूं के बदले में सारी कपास आ गई, क्योंकि कपास का वेट बहुत कम रहता है। तो दैट इज रीजन कि जिसने कपास उगाई उसके पास जस्टिस नहीं हुआ, उसके जस्टिस ट्रेड नहीं हुआ, तो वो इस ट्रेड के नाम से उसकी सारी जो कैपिटल थी वो लूज कर गई, और जिसने गेहूं उगाया हैवी ग्रेन था तो उसको फायदा हो गया। तो इस ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस टाइम जो स्मार्ट पीपल थे उन्होंने फिर निकाला कि हम लोग वेट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है, तो आज के बाद हम काम करेंगे वैल्यू के ऊपर। तो उन्होंने सोचा कि हम हर प्रोडक्ट की वैल्यू माप लेते हैं, एक पैमाना ले आते हैं, तो हर चीज का वैल्यू ऐड हो जाएगा, और हम वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, ना कि कॉमन प्रोडक्ट को एक्सचेंज करेंगे। तो आज भी आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक इस धरती पे जो भी प्रोडक्ट पैदा होता है, माइन होता है, उस प्रोडक्ट को आज वैल्यू सुबह हमें मिल जाती है, चाहे वो मंडी के माध्यम से, चाहे ऑनलाइन, चाहे करेंसी, उसकी वैल्यू आपको सुबह मिल जाती है। तो हर चीज की एक वैल्यू निर्धारित हो जाती है, एक फिक्स मैकेनिज्म के थ्रू एक वैल्यू निर्धारित हो गया, हम उस वैल्यू को प्लस माइनस करना शुरू कर देते हैं। तो सेम, तो इसके लिए अब मेटल एक्सचेंज फैक्टर क्या बनाया गया कि मेरे पास कपास है, अब मैं कपास को पहले वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। वैल्यू मींस नंबर्स, 1 2 4 5 6 7, राइट। तो हमारे पास ये जो नोट है नंबर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, अब कपास को वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उस वैल्यू के बदले में फिर आगे कुछ और प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया। अब नंबर्स हमें चाहिए थे, तो नंबर्स हमें चाहिए, तो नंबर्स उस टाइम लोगों ने किस चीज के बनाए, मेटल के, क्योंकि उस टाइम कागज था नहीं, लोगों के पास जब कागज प्रिंट करने की टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो लोगों ने क्या किया कि सोना, चांदी, गिल्ट, अपना ये से तांबे के, राइट, मेटल के कॉइन बना रहे थे, क्योंकि हर एरिया में डिफरेंट मेटल मिली, तो जिसको जो मेटल मिली उसका उसने नंबर छाप लिया। अब मेटल जो है वो एक प्रीशियस होती है हमेशा, और वर्ल्ड वाइड उसकी वैल्यू सेम रहती है, और सिर्फ दूसरा, मेटल को इंसान डुप्लीकेट पैदा नहीं बना सकता, तो इसमें डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम समस्या नहीं थी। दूसरा, मेटल लिमिटेड है, इसमें अनलिमिटेड छापने की समस्या नहीं थी, तो इसलिए मेटल कॉइन को चूज किया गया ट्रेड के लिए। अब गेहूं के बदले में पहले मेटल कॉइन लेंगे, फिर मेटल कॉइन को आगे किसी दूसरी कमोडिटी में आप कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो मेटल कॉइन ने हमारा ट्रेड आसान कर दिया, जस्टिस ट्रेड दे दिया हमें। अब 5,000 साल तक दुनिया मेटल कॉइन के ऊपर ट्रेड करती रही बहुत अच्छे से, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रही। मेटल कॉइन में दिक्कत तब सामने आई जब इंसान ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड स्टार्ट किया। पहले दुनिया छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी, लोग नदी नाले भी पार नहीं करते थे, लोग उतनी दूरी तक जाते थे जहां तक वो शाम को घर पे वापस आ जाए, राइट। तो आज की तरह तो नहीं थे कि आज जितने बिजनेसमैन हैं वो 24 घंटे में पूरे वर्ल्ड में मीटिंग लगा के घर पे आ जाते हैं, तो उस टाइम ऐसा सिस्टम नहीं था। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड स्टार्ट हुआ, लोगों के पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आने शुरू हुए, तो लोगों ने लंबी दूरी का ट्रेड करना शुरू किया। जब लंबी दूरी का ट्रेड करना शुरू हुआ, तो मेटल को साथ लेके जाने के लिए एक प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई कि लंबी दूरी में हम सोना चांदी इतना भारी भरकम कहाँ से लेके जाएं। दूसरा, मेटल में समस्या ये थी कि मेटल डिविजिबल नहीं थी, बार्टर नहीं होती थी आसानी से। डिविजिबल इन द सेंस कि मान लीजिए आपने सुबह सब्जी खरीदने जाना है, और आपके पास आप 10 ग्राम सोना लेके चले गए या चांदी लेके चले गए सब्जी खरीदने के लिए, किसी ने आपसे आधा ग्राम मांगा, किसी ने आपसे 2 ग्राम मांगा, तो वो उस टाइम आप उसको डिवाइड करके कैसे दोगे। तो ये दो प्रॉब्लम मेटल्स में थी जो ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में सामने आई। तो इसका सोल्यूशन आपको दिया गया। हर शहर के एक बड़े व्यक्ति ने आपको एक ऑफर की कि आप सोना चांदी मेरे पास रख दो, मेरे पास तिजोरी है, जहां पे आप जाना चाहते हो इस सोना चांदी की मैं आपको रिसिप्ट देता हूँ, आप रिसिप्ट लेके चले जाओ दिल्ली बॉम्बे जहां भी शॉपिंग करनी है आपने, तो आपको रिसिप्ट के बदले में सामान मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम सामान मिलता था मेटल के बदले में, तो मेटल को ट्रैवल करना प्रॉब्लम था। तो आपको एक फैसिलिटी ऑफर हुई कि रिसिप्ट के बदले में आपको सामान मिल जाएगा, सोना मैं अपने आप बाद में पहुंचा दूंगा, उस व्यक्ति ने बोला 2% फीस लूंगा। तो ये एक अच्छी ऑफर थी, जितने भी ट्रेडर थे उनको अच्छी लगी कि हम लोग सोना लेके नहीं जाना पड़ेगा और सामान हमें मिल जाएगा, कि हमें तो सामान बेच के ट्रेड करना है। तो लोगों ने इस फैसिलिटी को यूज किया और मार्केट में ये फैसिलिटी प्रमोट होनी शुरू हो गई। आज तक यही फैसिलिटी प्रमोट हो रही है। लोग उस जो रिसिप्ट है उसको प्रमोट करते करते रिसिप्ट को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में आज तक लगे हुए हैं।
तो जिसने सोना रखा वो बैंक बन गया, और जिसने जो करेंसी जो शिफ्ट आपको मिली सोने के बदले में, वो करेंसी बन गई। तो इस तरह से हम मेटल कॉइन से करेंसी में आ गए, एक फैसिलिटी के रूप में। करेंसी ने दो काम बहुत अच्छे किए। पहला कि बहुत हैवी वैल्यू की मेटल को आप एक पेपर नोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर नोट यूज हुआ था सिल्क रूट पे, सिल्क रूट जो चाइना से यूरोप तक जाता है, इस रूट इस काम के लिए। उसके बाद ये चलचल में आ गया। तो एक तो हाई वैल्यू को आप पेपर में कन्वर्ट करके ट्रेवल आसान हो गया आपका। दूसरा, करेंसी ने बार्टर बहुत आसान कर दिया। बार्टर आसान कैसे कर दिया? आपने देखा होगा पूरे दुनिया में आपको 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 के नोट मिलते हैं, यही डिनोमिनेशन मिलती है। तो ये 7 नंबर आपको क्यों मिलते हैं? क्योंकि करेंसी छापने के ऊपर हमारा खर्चा होता है, तो हम कम से कम नोटों में मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं। तो इन 7 नंबरों में आप दुनिया की कोई भी फिगर विभाजित या भागित कर सकते हो, डिवाइस कर सकते हो। आपने 2000 का नोट दिया, 7 रुपए का सामान लिया, 1993 रुपए आपको 1 सेकंड में मिलेंगे। तो ये आसानी से बार्टर हो गई। इस करेंसी की इस फैसिलिटी की वजह से पिछले 200 साल में करेंसी ने इतना फास्ट ट्रेड करवा दिया लोगों को, जो पिछले 5-4 साल में नहीं हुआ। तो ये करेंसी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, जिसके लिए हम लोग करेंसी में चले गए, और करेंसी में बहुत अच्छा ट्रेड स्टार्ट हो गया। और इंडिया के अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो 1897 में इंडिया का पहला बैंक एस्टेब्लिश हुआ, पंजाब नेशनल बैंक। 1897 में अमृतसर के पास मजीठा गांव है, मजीठा में लाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत राय, 5 लोगों ने मिलकर इस बैंक को लॉन्च किया। उसके बाद बहुत से बैंक लॉन्च हुए, और पंजाब के इंद्रजीत सिंह का नाम आप जानते होंगे, उन्होंने बहुत से बैंक लॉन्च किए। 1971 से पहले सारे बैंक प्राइवेट थे। 1971 26 नवंबर 1971 को सारे बैंक नेशनलाइज हुए। अब फिर सारे बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं। तो बैंकिंग एक फैसिलिटी है जो आपको बार्टर या ट्रेड हेल्प में करती है, और वही लोगों की फैसिलिटी आज वर्ल्ड वाइड चलना शुरू होगी। विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग आज दुनिया में आप 1 सेकंड में कोई भी सामान कहीं से भी बाय कर सकते हैं। बट जो बैंकिंग करेंसी आई, या बैंक ने ये नंबर हमें दिए, इस नंबर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी 1972 में। 1972 से पहले जिस देश के पास जितना सोना होता था उतनी ही करेंसी छपती थी, ये आपने पढ़ा होगा इतिहास में, राइट। बट 1972 के बाद ये रूल चेंज हो गया। 1972 से लेके 1991 की गल्फ वॉर तक करेंसीज ट्रेड बैलेंस के ऊपर चलेगी। मतलब जिसका ट्रेड सरप्लस होगा, निर्यात सरप्लस होगा, तो वो बफर करेंसी छाप सकता है, अदरवाइज उसको करेंसी इलिमिनेट करनी पड़ेगी। और 1991 की गल्फ वॉर के बाद करेंसीज ओपन हो चुकी हैं। आज अगर दुनिया में देखें तो 3 देशों को छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करेंसीज अनलिमिटेड छपती है, कोई लिमिट नहीं उसकी। तो करेंसी अनलिमिटेड कैसे छपती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप नोट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया की करेंसी की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे कि 1 रुपी नोट और कॉइन्स जितने भी सिक्के हैं वो भारत सरकार छाप रही है, राइट। अगर आपके पास हो जेब से निकाल लेंगे तो भारत सरकार छाप रही है। 2 रुपए से लेके 2000 के नोट ये आरबीआई छाप रहा है, राइट। तो आप चेक कर सकते हैं इसको। और ये रूल वर्ल्ड वाइड है। इवन इंग्लैंड में भी जितने पेनीज हैं, सिक्के हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड छाप रही है, और जितने नोट है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड छाप रहा है। तो ये 1970 बाद के वो रूल चेंज हो गया। इंडिया में ये रूल 1952 में आ गया था। 1951 तक जितनी भी करेंसी छपती थी, चाहे वो नोट थे चाहे वो सिक्के थे, वो भारत सरकार छापती थी। उसके बाद आरबीआई के पास ये पावर चलेगी। आज आरबीआई 2 से 2000 के नोट छाप रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो 1 रुपए का नोट और 1 रुपए के सिक्के से लेकर 2000 का सिक्का जो है वो भारत सरकार छाप रही है। तो क्वेश्चन ये पैदा हो गया कि एक ही देश में 2 लोग करेंसी क्यों छाप रहे हैं, ठीक है। उसका सिंपल मैकेनिज्म है कि जो करेंसी आपको गवर्नमेंट देती है वो करेंसी मिंट होती है। ये एक शब्द, 2 शब्द आप जरूर ध्यान रखें कि 1972 से पहले जितनी भी करेंसी छपती थी उस करेंसी को बोला जाता था मिंटेड। मिंट का मतलब कि जितना सोना होगा, जितनी चांदी होगी, जितनी गिल्ट होगी, जितना तांबा होगा, जितना एल्यूमिनियम होगा, उसके बदले में करेंसी छपेगी। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का गोल्ड है तो 1 लाख की करेंसी छप सकती है, उससे ज्यादा नहीं छप सकती। तो 1972 से पहले करेंसी मिंट होती थी, मतलब प्योर गोल्ड के बदले में। लेकिन 1972 के बाद ये फॉर्मेट चेंज हुआ और करेंसीज प्रिंट होना स्टार्ट हो गई। तो आज 2 तरह की करेंसी छपती है। एक करेंसी मिंट होती है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, दूसरी करेंसी जो बैंक का देता है वो प्रिंट होती है, वो मिंट नहीं होती। दैट इज रीजन जो बैंक आपको नोट दे रहा है वो उसके ऊपर एक प्रोमिसरी नोट लिखा होता है, मैं धारक को 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। जबकि जो करेंसी आपको गवर्नमेंट दी है उस पर वचन नहीं लिखा हुआ। मीन्स वो मिंटेड करेंसी है, वो करेंसी किसी चीज के बदले में दी गई है।
आप उस करेंसी के बदले में सोना चांदी गवर्नमेंट से ले सकते हैं कभी भी। लेकिन जो करेंसी बैंक आपको दे रहा है, इट्स अ प्रॉमिसरी नोट, इसको फिएट करेंसी बोलते हैं। दिस इज नॉट अ गोल्ड बैक करेंसी, ये फिएट करेंसी है, ये प्रिंट होती है और इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट होती है। मींस अगर आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए तो गोल्ड बैक करेंसी छापनी है तो 1 करोड़ का गोल्ड चाहिए तो 1 करोड़ छपेगा, नोट छपेगा। अगर आपको फिएट करेंसी छापनी है 1 करोड़ की, तो फिएट करेंसी 1 करोड़ की छापने का जो आपका कॉस्ट है वो है 37,000 रुपए। 37,000 की प्रिंटिंग कॉस्ट में 1 करोड़ रुपया छप जाएगा। तो अब इसकी जिंदगी, हमारी जिंदगी में इसका इम्पैक्ट क्या होता है? लेकिन आज आप देखें कि एक फॉर्मेट मार्केट में चल रहा है कि गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। बट ये फॉर्मेट काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैलकुलेशन क्या है, ये हमें समझ नहीं आती कि हम इतनी महंगाई क्यों हो रही है। हम इतनी पैसे कमाते हैं, पहले घर में एक व्यक्ति कमाता था, सारा घर चलता था। आज घर में 5 व्यक्ति हैं, पांचों कमा रहे हैं, फिर भी घर की चलन में दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत कहाँ पे है? तो दिक्कत है कि जो करेंसी प्रिंट हो रही है वो 1 करोड़ प्रिंट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 37,000 में, राइट? ये आप सारे गूगल करके देख सकते हैं। तो 37,000 में 1 करोड़ की वैल्यू मार्केट में आ रही है। अब जिसके पास करेंसी छापने का राइट है, अगर उसको करेंसी चाहिए तो वो 10 करोड़ की करेंसी 3,70,000 में छाप के मार्केट में ले आएगा और मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट बाय कर लेगा, क्योंकि मार्केट में दोनों करेंसियां एक जैसी हैं। किसी को आज तक पता नहीं करेंसी का डिफरेंस क्या है। हम भी जब क्रिप्टो करेंसी की रिसर्च में निकले तब हमें पता चला ये 2 तरह की करेंसी मार्केट में क्यों आ रही है, एक तरह की क्यों नहीं आती, राइट? तो जो करेंसी बैंक में मार्केट में लेके आता है वो इन्फ्लेटेड करेंसी है। मींस 370 रुपए की वैल्यू को 10 करोड़, सॉरी 37,000 की वैल्यू को 1 करोड़ बना दिया गया है, इन्फ्लेट कर दिया गया है। तो मार्केट में करेंसी छप के ज्यादा आ जाती है। जब मार्केट में करेंसी सप्लाई बढ़ जाएगी ड्यू टू एनी रीजन, किसी ने छाप के दे दी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोगों की बाइंग पावर बढ़ जाएगी। आपकी जेब में अगर 10 लाख है तो आप मारुति के बारे में सोचेंगे लेने के लिए, अगर 10 करोड़ है तो आप मर्सिडीज के बारे में सोचेंगे। तो जब मार्केट में करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों की बाइंग पावर बढ़ जाएगी। अब करेंसी आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन मार्केट में जितना भी सामान है वो प्रिंट नहीं हो सकता, वो मिंट ही होगा। मर्सिडीज मिंट होगी, लैपटॉप मिंट होगा, राइट? तो वो प्रिंट नहीं हो सकता। तो दैट इज अ रीजन, एक डिफरेंस आ जाता है मार्केट में वैल्यू का और प्रोडक्ट का। तो गवर्नमेंट के पास 2 सोल्यूशन है, या तो जो ओवर करेंसी छापी है उसको कम करके नीचे ले आए ताकि वैल्यू और प्रोडक्ट सेम रहे, लेकिन वो कर नहीं सकती। तो करेंसी, ओवर सप्लाई करेंसी इन्फ्लेशन कर देती है। अब गवर्नमेंट का सोल्यूशन क्या होता है कि जितना भी सामान मार्केट में है उसका रेट बढ़ा के करेंसी की सप्लाई के बराबर कर दो। तो दैट इज अ रीजन कि महंगाई आ जाती है मार्केट में। महंगाई होती नहीं, की जाती है कि करेंसी ज्यादा मार्केट में आ चुकी है। अब उस करेंसी को बर्न भी करना है, तो बर्न करने के लिए 10 रुपए वाली बोतल को 100 रुपए का कर दिया जाता है। अब इम्पैक्ट क्या होता है हमारी जिंदगी में कि जब हम करेंसी कमाते हैं इतनी मेहनत से, तो आटा होता है 2 रुपए किलो, लेकिन जब हम करेंसी खर्च करते हैं फ्यूचर में तो आटा जो है, गेहूं जो है वो हो जाता है 100 रुपए किलो। तो हम लोग बैठे बैठे जो है 50 गुना गरीब हो गए, तो एक उसी प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएशन। अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये जो है ये नंबर सिस्टम है सारे दुनिया में, ये मैथ है, राइट? और इस नंबर सिस्टम में हम लोग कभी नहीं समझ पाते कि ये नंबर हम कमाते हैं हमारी जिंदगी में इसका इम्पैक्ट क्या है और ये नंबर डिवैल्यूएट क्यों हो जाते हैं। टेक्निकली नंबर बढ़ते रहते हैं, बैंक आपको डबल करता है, ट्रिपल करता है, इसकी एग्जांपल देता है 10 साल में डबल कर देता है, लेकिन वो नंबर बढ़ते हैं, लेकिन नंबर की वैल्यू कम होती जाती है। ये आप देखें कि 10 साल बाद पहले बैंक को आपने 1 लाख रुपए दिए थे, उस टाइम कितना गोल्ड, कितनी प्रॉपर्टी आती थी, कितना गेहूं आता था। आज आप बैंक को 1 लाख दे रहे, बैंक ने 1 लाख के 2 लाख भी वापस दे दिए, तो उससे कम ही सोना आता है, उससे कम ही प्रॉपर्टी आती है, उससे कम ही गेहूं आता है। तो टेक्निकली बैंक ने नंबर गेम में नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, बट वैल्यूएशन को और नीचे ले गया, गरीब कर गया लोगों को। तो ये मैकेनिज्म जो है, इस मैकेनिज्म की वजह से जो है बैंक या करेंसी छापने वाले लोग अमीर हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पावर है, और जो लोग करेंसी यूज कर रहे हैं वो गरीब हो रहे हैं क्योंकि उनकी करेंसी पड़ी पड़ी जो है अपनी वैल्यू को कम करती जाती है। सिंपल एग्जांपल, 10 साल पहले आपकी जेब में 100 रुपए का नोट था, आप याद कीजिए कितने किलो आलू प्याज आते थे। आज वही 100 रुपए का नोट आपके पास है, आज कितने किलो आलू प्याज आते हैं। तो अब क्वेश्चन पैदा हो गया कि आलू प्याज की तो युगों से इस धरती पे है, उसकी प्राइसिंग कौन बनाता है? 10 साल पहले आलू प्याज ज्यादा क्यों आते थे उसी 100 रुपए के बदले में, आज कम क्यों आ रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि 10 साल पहले उस करेंसी की वैल्यू ज्यादा थी, सामान ज्यादा था। आज करेंसी की वैल्यू कम है तो सामान कम आता है। दैट इज अ मेजर फैक्टर कि जिसके ऊपर गरीब गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं। और इन्फ्लेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसके रिगार्डिंग सबसे बड़ा फैक्टर हम लोग गरीब होते हैं,
जैसे हमारे बाप दादा की बात करें तो वो सिक्कों में हमेशा खेलते थे, 1-2 रुपए बहुत होते थे। अगर आप 70 के या 60 के दशक की बात करें तो तब 10-10 भाई बहन होते थे। परिवार बड़ा था लेकिन सबको अच्छी परवरिश मिली, सबको अच्छी एजुकेशन मिली, सबको अच्छी जमीन जायदाद मिली। आज हम देखें कि आज हम 1 से 2 बच्चे करने में शर्मा रहे हैं। उसका फैक्टर यही है कि हम लोग, पता है कि हम बच्चे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन सामान मल्टीप्लाई कहाँ से करें? तो आज कमाई कहाँ से लेके आएँ? घर 2 कैसे आएँगे? गाड़ियाँ 2 कैसे आएँगी? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके लिए ये करेंसी फैक्टर की वजह से हम लोग जनरेशन के ऊपर फैक्टर आ गया। और सबसे बड़ा फैक्टर इसका आप देखें कि जिस देश में जितना बड़ा नंबर चलता है, जितना बड़ा नोट चलेगा, उतना वहाँ पे गरीबी होगी, भुखमरी होगी। आप एग्ज़ाम्पल लीजिए वेनेज़ुएला की, आप ज़िम्बाब्वे की, इधर उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इधर इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, यहाँ 10 लाख का नोट भी है, 1 करोड़ का नोट भी है। तो वहाँ आप जाइए कितना भुखमरी है आप देखिए। और जिस देश में जितना छोटा नोट चलेगा, जितनी छोटी करेंसी चलेगी, वहाँ जो है उतनी खुशहाली आबादी होगी। अब एग्ज़ाम्पल लीजिए यूरोप की, वहाँ 50 से ऊपर का नोट नहीं है, राइट? और आप कनाडा की एग्ज़ाम्पल लीजिए, 100 से बड़ा नोट नहीं है। अमेरिका में 100 से बड़ा नोट नहीं है। और आप देखिए इधर अपना ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, तो यहाँ छोटी करेंसी चलन में है। आज भी वहाँ पेनीज़ की दिक्कत है। 5 पैसे, 10 पैसे की आपको आम मिल जाएँगे वहाँ। हमारे यहाँ 5 पैसे खत्म ही हो चुके हैं। तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाके गरीब हो चुके हैं। और उन करेंसी में इन्फ्लेशन नाम की चीज़ नहीं है, करप्शन इतने बड़े सिस्टम पे नहीं है। इसलिए इन्फ्लेशन कम होने की वजह से वहाँ जब आप जाके कमाते हो, तो आप अमीर हो जाते हो। यहाँ इन करंट कंट्रीज़ में जहाँ इन नंबर बहुत बड़े हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो आप कमाते हो, आप गरीब हो जाते हो। तो ये एक फैक्टर है बैंकिंग करेंसी में। अब इसका सॉल्यूशन कहाँ आपको मिलेगा? 2 ऑप्शन है कि जिसने आज तक इसके ऊपर आवाज़ उठाई, उसको किसी न किसी माध्यम से दबा दिया गया। तो दैट इज़ द रीज़न कि एक बहुत बड़े ग्रुप ने या एक साइंटिस्ट ने एक दिमाग लगाया कि आपको नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि आपको ट्रेड करना है। ट्रेड में आपको नंबर्स चाहिए। तो उसने बोला भाई साहब नंबर अपने खुद के बना लो। आप सेंट्रलाइज़्ड नंबर सिस्टम बंद कर दो यूज़ करना। तो नंबर खुद के कैसे बनेंगे? उसका ट्रस्ट फैक्टर क्या कैसे आएगा? तो उसका ट्रस्ट फैक्टर आएगा कि एक व्यक्ति ने एक ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिटकॉइन। आपकी आवाज कट रही है सर। अभी ओके है? हेलो? आवाज It's सही okay? है सर ओके है, ओके है। बाकी आप अपना नेटवर्क चेक करिए। सर की आवाज ओके आ रही है सुमेंदु सर। ओके, ओके, ओके। तो बिटकॉइन क्यों बना? क्योंकि जो करेंसी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इन्फ्लेशन, उसको खत्म करने के लिए क्रिप्टो करेंसी बनाई गई। करेंसी का इन्फ्लेशन सब्जेक्ट खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए कि करेंसी कौन छाप रहा है, क्यों छाप रहा है, कब छाप रहा है, कितनी छाप रहा है, ये पब्लिक को पता होना चाहिए। ये ओपन सोर्स होना चाहिए, राइट? लेकिन ये ओपन सोर्स नहीं है, आप आरटीए डाल के भी नहीं निकाल सकते। तो दैट इज रीजन एक ऐसा नंबर सिस्टम मार्केट में आया जिसमें कितने नंबर छपेंगे, कब छपेंगे, कौन छापेगा, कैसे छपेंगे, एल्गोरिथम क्या है, वो सारा ट्रांसपेरेंस हो गया। ओपन लेजर कॉन्सेप्ट आ गया अंडर ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसपे फर्स्ट प्रोडक्ट बना बिटकॉइन। बिटकॉइन का मतलब है, बिट मतलब कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज बिट। कॉइन मीन्स करेंसी का सबसे छोटा यूनिट। मतलब इन्फ्लेशन तब कम होगी अगर आप वापस छोटे में जाएंगे। तो आज आप देखेंगे कि जो फार्मूला हमने पहले 100 रुपए के नोट पे लगाया, आज वही फार्मूला हम लगाते हैं बिटकॉइन में। तो आज से 10 साल पहले एक बिटकॉइन का एक चॉकलेट आता था, आज एक बिटकॉइन का एक चॉकलेट का फैक्ट्री आता है। तो बिटकॉइन वही है, नंबर है, बैंक के भी नंबर हैं, इसके भी नंबर हैं। वो नंबर डिफ्लेट हो जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, और ये इन्फ्लेट हो जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, और क्रिप्टो करेंसी के नंबर अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन की वजह से। तो क्रिप्टो करेंसी आज से 4 साल पहले एक बिटकॉइन एक इंडियन बाय कर सकता था, लेकिन आज इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बाय करना पॉसिबल है। तो आज हम वापस छोटे नंबर में चले गए। आज आप एक बिटकॉइन के 100 में हिस्से या 1000 में हिस्से या 10,000 में हिस्से को खरीद पा रहे हैं। तो हम वापस छोटे में चले गए। तो क्रिप्टो करेंसी जिस काम के लिए बनाई गई थी उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, तो इसने इन्फ्लेशन खत्म कर दी है। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन छपेंगे। कैसे छपेंगे? बिटकॉइन का फर्स्ट जो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ वो 3 जनवरी 2009 को हुआ। अब इस दिन क्यों स्टार्ट हुआ ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि 3 जनवरी 2009 को वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक लेमन ब्रदर बैंक फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ बैंक? क्योंकि उसने इतने नंबर छाप दिए कि वो नंबर की भरपाई नहीं कर पाया, लोगों को लिक्विडेट ही नहीं कर पाया नंबर्स को। तो नंबर छपते छपते बैंक फेल हो गया। तो वो दोबारा वो नंबर फेल ना हुआ इंसान की जिंदगी में,
यानी जो नंबर आप कमा रहे हो इतनी मेहनत से, वो नंबर लिक्विडेट ना हो, फेल ना हो, तो उसके बदले में एक ऐसा नंबर सिस्टम दिया गया जो लिमिटेड है, ट्रांसपेरेंट है और अपनी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म है वो किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाया नहीं जाता, राइट। तो क्यों नहीं चलाया जाता? क्योंकि ये मशीन, इंसान ने इसको लिखा मशीन लैंग्वेज में, अब इसको मशीन ऑपरेट कर रही है, तो मशीन ऑपरेट कैसे करती है हम आगे समझेंगे। तो दैट इज रीजन हम क्रिप्टो करेंसी में आ गए। अब दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन, और कुछ नहीं है। रेस्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। दुनिया का फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ये बोला जाता है। ऑब्वियसली जो दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एग्जीक्यूट हुई दैट वाज अ बिटकॉइन, बट जो बनी पहली क्रिप्टो करेंसी दैट इज बिटकोल्ड। 1998 में निक सेजो ने, जो कि अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्होंने बना दिया थी बिटकोल्ड, या सर्च आउट कर सकते हैं। सेकंड है दुनिया का फर्स्ट अनोनिमस मनी, अनोनिमस वॉलेट जो बिटकॉइन में यूज होता है, दैट इज बी मनी के नाम से 1998 में वही वेडई ने बना दिया था। देवी अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है। टेक्निकली 1998 में मशीन लैंग्वेज दुनिया में आ गई। मशीन लैंग्वेज आने से के बाद ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही। आज आप देखेंगे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो सीएनसी मशीनों के ऊपर होती है। तो ये मशीन लैंग्वेज है सारी, जिसमें आप कमांड देते हैं, उसका मशीन ऑटोमेशन अपने आप काम करती है, ह्यूमन इंटरफेरेंस उसमें खत्म हो जाता है। तो सेकंड चीज, अगर आप bitcoin.org, जो संतोषी जो इसके फाउंडर है उसने बनाई थी वेबसाइट, उसमें व्हाइट पेपर आएगा। तो अगर ये डिसेंट्रलाइज है तो व्हाइट पेपर उसको सबमिशन होगा, तो व्हाइट पेपर आप पढ़िए। व्हाइट पेपर के 9th पेज के ऊपर आपको मिलेगा कि जो संतोषी ने क्लेम किया है कि जो मैंने बिटकॉइन बनाया, इसको मैंने बनाया है दुनिया के 7 डिफरेंट टेक्नोलॉजी को जोड़ के। तो जो मैंने आपको नाम बताया, ये सारे नाम वहां पे उसने लिखे हैं। उसने देखा मैंने एल्गोरिथम यहाँ से लिया, अनोनिमस वॉलेट यहाँ से लिया, क्रिप्टोग्राफी यहाँ से ली, तो 7 अलग अलग लोगों की टेक्नोलॉजी को उसने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट नया बना दिया, दैट इज बिटकॉइन। अब क्रिप्टो करेंसी क्यों बनाई हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए। सेकंड, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर मीन्स है कि जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं तो बीच में एक मीडिएटर आ जाता है जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं। तो ब्रोकर जो है वो अपने बेनिफिट के लिए होता है, आपके मेरे बेनिफिट के लिए नहीं होता। वो अपना जो उसका बाइट होता है यानी मार्जिन होता है उसके लिए होता है। तो आज देखें कि बैंक एक ब्रोकर है, वो मिडिल मैन है। हम लोग एक दूसरे को पैसा ट्रांजिट करते हैं तो बैंक हमेशा उसके ऊपर फीस के रूप में एक कुछ चार्ज कर लेता है। तो आप उसके में देखें कि अगर 1 लाख रुपया आप मल्टीपल उसको ट्रांजिट करें तो आई थिंक 90 या 100 ट्रांजेक्शन में 1 लाख फीस के रूप में मिट्टी हो जाता है, खत्म हो जाता है, बिकॉज पीयर टू पीयर नहीं है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता, इसमें मिडिल मैन नहीं होता, तो दैट इज रीजन के मार्जिन बीच में कटता नहीं है, तो डिवेलप उसकी जो कटिंग है वो बीच में आती नहीं है। तो ये दूसरा फैक्टर है इसमें। तीसरा फैक्टर है सॉरी, ट्रांसपेरेंसी। बैंक में आप अपना अकाउंट ही देख सकते हैं, पूरे बैंक का आप नंबर सिस्टम नहीं देख सकते। लेकिन किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप डे 1 से पूरी ब्लॉकचेन को खोल सकते हैं, पूरी लेजर को खोल सकते हैं, पूरे नंबर जितने भी उसमें घूम रहे हैं सारे ट्रांसफर देख सकते हैं। जी सॉरी। तो लिमिटेड सप्लाई, जहां सप्लाई लिमिटेड है उसकी वैल्यू बनेगी, अनलिमिटेड किसी चीज की वैल्यू कभी नहीं बन सकती। दैट इज द रीजन कि प्रिंटिंग जो नोट है वो अपनी वैल्यू कम होती करते रहते हैं, वो छपते रहते हैं। अनोनिमस ट्रांजैक्शन, ऑब्वियसली आप ट्रांसपेरेंसी देख सकते हो, लेकिन वहां नाम नहीं आता किसी का कि ये इतना बिटकॉइन किसका है, इतना बिटकॉइन किसका है। वहां जो ट्रांजैक्शन एड्रेसेस होते हैं वो सारे अनोनिमस होते हैं। वो एक 31 से 38 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसका कोड है उसके पास ही वो रहता है। अब कोड किसका है वो आप अंदाजा कभी नहीं लगा सकते, वो बहुत बड़ी एक फिगर होती है, उसको मेमोराइज भी किया नहीं जा सकता। और सेफ एंड सिक्योर, क्रिप्टोग्राफी ओपन सोर्स है, पूरा सॉफ्टवेयर ओपन है, राइट, पूरी कोड नोट सब कुछ ओपन है, गिटहब पे आप सारी इसके कोड निकाल सकते हो। स्टिल ओपन सोर्स होने के बावजूद ये हैकेबल नहीं है, ये क्रैकेबल नहीं है, इसको एडिट नहीं किया जा सकता, बिकॉज जब आप इसमें अकाउंट क्रिएट करते हो, जो भी इसके यूजर इसमें जाता है उसके पास इसकी की आ जाती है। तो जब तक सारी की इसके सॉफ्टवेयर में रीअसेंबल नहीं होगी, इसका सॉफ्टवेयर में एडिशन नहीं हो सकता। मतलब इसमें सारे ओनर यूजर होते हैं, सारे यूजर ओनर होते हैं। तो दैट इज रीजन कि अगर दुनिया में 100 अकाउंट बने हैं, 99 अकाउंट बोल रहे हैं कि हमें इसमें एडिशन करना है, पर एक अकाउंट बोल रहा है कि मुझे एडिशन नहीं चाहिए, तो नहीं होगा।
तो दैट इज द वीटो पावर ओवर हियर। तो इस वजह से इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। अब करेंसी बिटकॉइन आई, बिटकॉइन के बाद लाइट कॉइन आई 4 साल बाद, फिर डैश आई, डोज आई। तो आज आप देखेंगे कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जाएंगे 16,000 क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड है, 16,000 की भी। बट क्वेश्चन है कि 16,000 में क्रिप्टो करेंसी कौन सी है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि उनमें से क्रिप्टो करेंसी सिर्फ 9 है तो आप चौंक जाओगे। अब क्रिप्टो करेंसी 9 ही क्यों है, बाकी क्या है, फिर वो समझने वाली बात है जो हम आगे समझेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी आई क्यों मार्केट में, बिटकॉइन के बाद दूसरी करेंसी क्यों आई? क्योंकि बिटकॉइन जब बना वो आज 2009 का प्रोडक्ट है, 2009 का ब्लॉकचेन मॉडल है। उसके बाद उसमें एडिक्शन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो नई नई करेंसीज आई तो जो वहां पे कुछ कमी, कुछ पेशी या एडवांस वर्जन की जरूरत थी मार्केट में, तो एडवांस वर्जन आते गए। कैसे कैसे एडवांस वर्जन आए तो वो हम आगे डिस्कस करें। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि बीटीयू क्यों आई, कि आप पैसा लगाते हैं, आपके पास कैपिटल होती है 100 रुपया, आप 100 रुपया बढ़ाने के चक्कर में किसी स्टॉक में लगाते हो। अगर वो स्टॉक बढ़ जाता है तो आपका 100 रुपया 200 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्टॉक कम हो जाता है, आपका 100 रुपया 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर वो स्टॉक 0 हो जाता है तो आपका 100 रुपया 0 हो जाता है। मीन्स आपकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको किसी टूल की जरूरत है। तो ट्रेडिंग सारे टूल्स है जिसमें आप अपनी स्किल के माध्यम से आप ट्रेडिंग में मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन ये भी दुनिया का एक फैक्टर है कि प्रॉफिटेबिलिटी दुनिया में कभी नहीं होती। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ होती है? जहां किसी के पास लॉस होता है। तो आप प्रॉफिट्स तब सेटल करते हो जब समबडी कोई कहीं लॉस खा रहा है। तो दैट इज द रीजन प्रॉफिट हम वहां से स्किल के माध्यम से जनरेट करते हैं। सॉरी। तो बीटीयू में एक मैकेनिज्म ऐड किया गया है जिसको हम हेजिंग बोल सकते हैं, कि क्रिप्टो करेंसी बाकी जो है अगर वहां पे आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो 100 मल्टीप्लाई होके बढ़ सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी साथ में है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके 100 रुपए को इमीडिएटली 50 रुपए साथ ही गोल्ड में मिंट कर दिए जाते हैं एज ए सिक्योरिटी। तो अगर आप फ्यूचर में आपका 100 रुपया बढ़ गया, प्रॉफिट में आ गया, तो वेल एंड गुड, आप प्रॉफिट लेके घर को जाइए। अगर वो प्रॉफिट में नहीं आया, लॉस में चला गया, तो इन दैट केस जो आपका 50% है डे 1, वो आप गोल्ड, आप उसकी वैल्यू को आप कवर कर सकते हैं एज ए हेज। तो इस वजह से ये मैकेनिज्म काम करता है। तो यहाँ पे गोल्ड आप फिजिकल भी ले सकते हैं, वर्चुअली भी आप उसको यूएसडीटी या बीटीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं एनी टाइम। गोल्ड वॉलेट स्विट्जरलैंड में है, और जहाँ पे जो वैल्यू ऐड होती है गोल्ड की, वो 24 कैरेट की ही ऐड होती है, और 24 कैरेट की वैल्यू आपको मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को जो राइट किया है, स्क्रिप्ट डाउन किया गया है, वो है एंथनी हीस्टन। वर्ल्ड के सबसे बड़े ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन के ऊपर या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बुक्स लिखी हैं। Amazon पे इनकी बुक्स अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इट्स अ क्रोशियन साइंटिस्ट, और ये उन लोगों में से भी है जिन्होंने स्टार्टिंग में सतोशी जो भी ब्लॉकचेन बिटकॉइन डेवलपर है उसके साथ कम्युनिकेट किया, क्योंकि 2009 से लेके 26 अप्रैल 2011 तक संतोषी जो भी डेवलपर था वो दुनिया के बहुत लोगों के साथ थ्रू मेल कनेक्टेड था, और 27 अप्रैल 2011 के बाद वो आज तक अनोनिमस हो गया। उसके बाद इसके को फाउंडर है माइकल हॉर्सले, वर्ल्ड के फर्स्ट एंटरप्रेन्योर, बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड टीचर एंड प्रोफेसर, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जिन्होंने इसको ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी को लोगों को एजुकेट किया, पढ़ाया है। और ये इसका ओवरव्यू है। कॉइन का नाम है बीटीयू, बीएयू निकनेम है। एल्गोरिथम प्रूफ ऑफ वर्क। अब ये एक समझने वाली बात है, व्हाट इज प्रूफ ऑफ वर्क? प्रूफ ऑफ वर्क क्या है कि जैसे हम टाइम की एग्जांपल ले लेते हैं कि जब से हम लोग जन्मे हैं, हम ये सुनते हैं कि सबसे छोटी इकाई टाइम की होती है 60 सेकंड, 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, 24 घंटे 1 दिन, 7 दिन का हफ्ता, 30-31 दिन का महीना, 365-66 दिन का 1 साल। तो ये एक एल्गोरिथम है टाइम का, और मेरे ख्याल से ये एल्गोरिथम कभी भी चेंज नहीं हुआ, ना तो पास्ट में ना फ्यूचर में चेंज होगा, क्योंकि दुनिया में जितना भी टाइम है वो 00 आवर GMT के ऊपर एक फिक्स करके उसको चला दिया गया है। अब अगर टाइम कहीं पे भी चेंज हो जाएगा तो पूरी दुनिया में उथल पुथल हो जाएगी, और बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएगा, और मे बी दुनिया आज खत्म भी हो जाए अगर
टाइम खराब, एक अगर टाइम को हम चेंज कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज कि हम टाइम को भगवान मानते हैं, ये चेंज नहीं हो सकता, इसका एल्गोरिथम चेंज नहीं हो सकता, इसका कभी भी 59 सेकंड का या 23 घंटे का दिन नहीं बन सकता। तो ये एक फैक्टर है कि टाइम को हम भगवान मानते हैं। तो बिटकॉइन नंबर्स का भगवान कैसे बना? आज बिटकॉइन $65,000 का हाईएस्ट लगा के आया, अभी भी $40,000 का है। तो एक नंबर सिस्टम की इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये हम मानते हैं कि ये चेंज नहीं हो सकता, बट ये चेंज नहीं हो सकती, इसकी गारंटी हम लोग कैसे लेंगे? तो इसकी गारंटी है प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? वो एल्गोरिथम जिसको मशीन ड्राइव कर रही है। तो इसमें जो कैलकुलेशन, जो एल्गोरिथम आपने इसको लिख दिया है, मशीन को दे दिया प्रूफ ऑफ वर्क का एल्गोरिथम, फिर आप अगर बिटकॉइन का व्हाइट पेपर निकालेंगे, 7th पेज पे उसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है कि बिटकॉइन किस कैलकुलेशन, किस फार्मूले को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये जो इसका एल्गोरिथम है, ये लिखा इंसान ने है, बट इसको एग्जीक्यूट मशीन कर रही है। ये ह्यूमन इंटरफेरेंस से बाहर है, क्योंकि मशीन के पास इमोशंस नहीं होते, इंसान के पास इमोशन होते हैं। तो इंसान जब भी गलती करता है, इमोशन की वजह से करता है, कैलकुलेशन सेम रहती है। लेकिन मशीन, आप एक कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर को 2 गुना 2 जितनी बार मर्जी पूछिए वो 4 बताएगा, लेकिन इंसान को आप तीसरी बार पूछोगे वो गाली दे देगा, समझ में नहीं आता ये बोलेगा, इमोशन आगे साथ में। तो दैट इज द रीजन कि ये टेक्नोलॉजी मशीन ड्रिवन है और ह्यूमन इंटरफेरेंस से बाहर है, तो हम उसको बोलेंगे प्रूफ ऑफ वर्क। और प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी सबसे पहले आई बिटकॉइन में, उसके बाद आई लाइटकॉइन में, उसके बाद आई डैश में, उसके बाद डोज में, फिर जेड कैश में, फिर मोनेरो में, फिर बिटकॉइन कैश में, फिर बिटकॉइन एसपी में, और फिर बिटेयू में। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी बेस की बात करें, जिस टेक्नोलॉजी पे बिटकॉइन चल रहा है, उसी टेक्नोलॉजी पे बिटेयू इज द 9th क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। अब उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे इथेरियम है, ट्रोन है, या अदर कॉइन्स हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि जिसका स्टेक बड़ा होता है उसको बड़ा रिवॉर्ड मिलता है माइनिंग में, राइट? उसमें स्टेक लगाना पड़ता है। और दूसरा, प्रूफ ऑफ स्टेक मशीन लैंग्वेज में काम नहीं करता, वो सॉलिडिटी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज में काम करेगा। और जितने भी प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन है, उसमें सप्लाई अनलिमिटेड है, आपको पता नहीं कितने छपने हैं। तो अनलिमिटेड सप्लाई, अनलिमिटेड नोड, वो तो वन टू सेम थिंग हो गया। लेकिन जितने प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन है, इसमें सप्लाई लिमिटेड होगी, पहले दिन पता होगा कितने छपने हैं, कब छपने हैं। जैसे बिटकॉइन की बात करें तो डे 1 फर्स्ट बिटकॉइन बना 3 जनवरी 2009 को, लास्ट बिटकॉइन बनेगा 3 जनवरी 2140 को। तो उसका एक एल्गोरिथम फिक्स है, वो सारा, जिस एल्गोरिथम को आज ही आपको पता है कि किस दिन कितने बिटकॉइन बनने हैं, कब कब कौन कौन सा बनेगा, वो डे 1 पता है। तो सेम दिस इज प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी। इसमें टोटल सप्लाई जो है वो 37,80,000 है, 3.7 मिलियन बोल सकते हैं। और दूसरा, क्रिप्टो करेंसी में आज जो आपके सामने पेश किया जाता है वो टोटली टोकन्स हैं। 99.9% आपके पास जो आती है क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, वो टोकन आते हैं। उनकी ना तो ब्लॉकचेन होती है, ना उसमें एल्गोरिथम होता है, ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जो क्रिप्टोग्राफी के साथ मिलता जुलता हो। बस ये होता है कि एक थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बना होता है, जो आपको बेच दिया जाता है क्रिप्टोग्राफी के नाम पे, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे। और वो मैकेनिज्म उसके पास होता नहीं, इसलिए वो सारे फ्लॉप हो जाते हैं। बट जो मैंने आपको इससे पहले 8 कॉइन बताए हैं, अगर आप उनका इतिहास निकाले, उसमें किसी का भी लॉस आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो एक फिक्स मैकेनिज्म के साथ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइनिंग। तो ये पैदा कैसे होती है, दैट इज माइनिंग। तो माइनेबल कॉइन है। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी में पावर आपको क्या दी कि आप हर इंसान इसको घर पे पैदा कर सकता है थ्रू माइनिंग, लेकिन हम नोट पैदा नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम थी। इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ ऑफ वर्क आपको वो पावर देती है हर इंसान को कि अगर आप चाहो बिटकॉइन अपने घर पे पैदा कर सकते हो, बिटेयू अपने घर पे पैदा कर सकते हो। तो असली और नकली क्रिप्टो करेंसी की पहचान एक ही है माय डियर, कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से या किसी पीयर से मिल रही है, वो हो भी सकती है, नहीं भी। दूसरा फैक्टर, अगर वो आपके घर में पैदा हो सकती है थ्रू एनी मैकेनिज्म, तो वो असली क्रिप्टो करेंसी है। लाइक बिटकॉइन, लाइक लाइटकॉइन, लाइक बिटेयू, ये 9 कॉइन ही ऐसे हैं जिसको आप घर पे पैदा कर सकते हैं। तो इसमें फिर माइनिंग कैसे होती है? 2 तरह की माइनिंग होती है, एक इंडिविजुअल ओपन, एक स्मार्ट पूल माइनिंग। तो इसमें दोनों फैक्टर में माइनिंग होती है। पहला 50% जो बिटेयू में माइन होगा वो पूल माइनिंग होगा, मींस हम सब लोग इकट्ठे मिलके ही माइनिंग करेंगे। जबकि बिटकॉइन में पहले इंडिविजुअल माइनिंग थी, आज पूल माइनिंग हो रही है, क्योंकि आज उसको जितना बड़ा माइनिंग सेटअप चाहिए वो इंडिविजुअल पर्सन क्रिएट नहीं कर सकता। तो वो मैं आगे आपसे लाइव शेयर करता हूँ। तो डेसिमल वैल्यू इसकी 8 है। डेसिमल वैल्यू का मतलब है कि आप अपना स्टेटमेंट निकालिए बैंक की,
तो आप देखेंगे बैंक की स्टेटमेंट में आपके पीछे .00 2 डेसिमल लगे हुए हैं। इट मींस जो बैंक के नोट हैं वो मैक्सिमम उसके 100 टुकड़े हो सकते हैं, आप उसको 99 यानी कि 100 टुकड़ों में तोड़ सकते हो, उससे ज्यादा टूटेंगे नहीं। बट क्रिप्टो करेंसी जिसने इसको डेवलप किया वो जीनियस था, उसको पता था कि जिस दिन बिटकॉइन की वैल्यू $1,00,000 हो जाएगी, $10,00,000 हो जाएगी, आप किसी को $1 ट्रांसफर करना चाहोगे तो कैसे करोगे, तो वो वहां तक टूटनी चाहिए। तो बिटकॉइन जो है वो ये 8 डेसिमल तक टूट जाता है, इसके इतने टुकड़े 1 करोड़ टुकड़े हम कर सकते हैं, इसकी इतनी वैल्यू बढ़ने के बाद भी, तो उसको ट्रांसफर में बार्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इसका टेक्नोलॉजी है। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, ये गिटहब पे व्हाइट पेपर पे सारी आप ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे इसको डाउनलोड करके या ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप पढ़ सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। और कोई भी ब्लॉकचेन या कोई भी क्रिप्टोग्राफी का प्रोडक्ट जो है वो गिटहब के ऊपर ही रजिस्टर्ड होता है। दिस इज द डिसेंट्रलाइजेशन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में मिलेगी। सो विद दैट, दिस इज द टेक्नोलॉजी मॉडल। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। टेक्नोलॉजी अच्छी है, सब कुछ ओके है, लेकिन हम इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? पार्टिसिपेशन फॉर द प्रॉफिट। तो पार्टिसिपेशन प्रॉफिट के लिए ये इसका मैकेनिज्म है। ये कंपैरिजन चार्ट है। मेरा स्क्रीन चेंज हो गया आपके साथ? नहीं हुआ? चेंज हो गया। बेकार नहीं हुआ। एक सेकंड, नहीं हुआ, एक सेकंड। अब चेंज हो गया सर? यस सर। चेंज हो गया, ओके। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। डिस्ट्रीब्यूशन में ये थोड़ा एक फैक्टर दिया गया है कि वर्ल्ड की 2 बड़ी करेंसीज बिटकॉइन और इथेरियम दोनों के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है। तो BitEu इज बैक्ड बाय गोल्ड, वो दोनों नहीं है। प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन एंड BitEu इज प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी, इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक है, माइनेबल तीनों है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इथेरियम इज डिसेंट्रलाइज्ड स्क्रिप्ट। अगर उसका व्हाइट पेपर निकालेंगे कहीं नहीं लिखा कि वो ब्लॉकचेन है, दैट इज द डिसेंट्रलाइज्ड स्क्रिप्ट। माइनिंग, BitEu दुनिया के सबसे एडवांस प्रोसेसर, सबसे छोटे प्रोसेसर PI प्रोसेसर पे माइन हो जाता है। बिटकॉइन लार्ज प्रोसेसर माइनिंग है और इथेरियम ग्राफिक कार्ड मेमोरी माइनिंग है, क्योंकि वो CPU बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो BitEu में ट्रांसफर फीस लो है। जब हम बार्टर की बात करते हैं, आप देखेंगे आज आप एक्सचेंज में जाते हो तो बहुत हैवी ट्रांसफर फीस आपको $100 लेने के लिए भी आपको ट्रांसफर करने के लिए $20 की फीस भरनी पड़ती है, ह्यूज जो है। तो यहाँ पे BitEu में ट्रांसफर फीस सबसे लो है आज तक के इतिहास ही। इसका ट्रांसफर फीस है जस्ट $0.01936। तो जब हम बार्टर करेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेंगे, तो ये सबसे फीस मैकेनिज्म सबसे ज्यादा काम आएगा। आज आपको UK, US, कनाडा किसी को फीस भेजनी है, किसी को पेमेंट भेजनी है, तो आप BTC USDT में भेजते हैं तो हैवी है, इसमें बहुत लोएस्ट फीस है। तो ये 4 फैक्टर है BitEu के जो इसको कामयाब कर रहे हैं। फर्स्ट, इट्स अ DNA ऑफ बिटकॉइन। सेकंड, इट्स अ लो फीस मॉडल। थर्ड, गोल्ड बैक मैकेनिज्म। एंड फोर्थ इज लो सप्लाई लाइन। इसकी सप्लाई कम है तो इसकी प्राइस एप्रिसिएशन ज्यादा हो। एक्सचेंजेस पे अवेलेबिलिटी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अभी ट्रेड के लिए आप एमिरेट्स पे जा सकते हैं और रेस्ट आप बाइनेंस तक देख सकते हैं कि टेक्निकल लिस्टिंग बाइनेंस में हो चुकी है। ट्रेड लिस्टिंग उनकी पेंडिंग चल रही है, क्योंकि ये एक नई ब्लॉकचेन है। हर एक्सचेंज को अपनी ब्लॉकचेन के नई ब्लॉकचेन को डेवलप करके ही अपनी एक्सचेंज के साथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनके डेवलपर को इसकी सिक्योरिटी काम करना पड़ता है, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले नहीं होती, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट इस साल के अंदर ये आपको वर्ल्ड की सब लीडिंग एक्सचेंजों में मिल जाएगी। ये 3 कंपनीज हैं, रॉयल मिंट, साउथ अफ्रीकन मिंट, गोल्ड, स्विस मिंट, जो 24 कैरेट गोल्ड को मिंट करती हैं। पैम्प एकमात्र कंपनी है जो गोल्ड को डिलीवर करती है। अगर आपको वर्ल्ड वाइड गोल्ड चाहिए तो पैम्प ही डिलीवर करती है। इंडिया में भी इसका ऑफिस है, वैसे स्विस बेस्ड कंपनी है। तो अगर आपको यहाँ पे गोल्ड निकालना पड़ा, फिजिकल लेना पड़ेगा, तो पैम्प आपको वो ऑर्डर आपके घर पे सप्लाई करेगी। और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन स्लाइड है जो हम शेयर करेंगे। इस स्लाइड को शेयर करने से पहले मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो जस्ट यस, तो स्क्रीन चेंज हो गया सर? नहीं हो गया चेंज जी। हो गया?
तो मैंने गूगल पे डाला है बिटकॉइन माइनिंग कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो असली क्रिप्टो करेंसी होती है वो माइनेबल होती है, हर इंसान उसको माइन कर सकता है इंडिविजुअल। तो इट्स अ डेमोक्रेटिक, फ्रॉम द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो क्रिप्टो करेंसी में जो इंसान मेरे पास राइट्स है वही आप सबके पास होंगे। तो दैट इज रीजन माइनिंग होती है इसकी। तो माइनिंग कैसे होती है कि अब बैंक जो है ना वो जब वो नंबर ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए आप बैंगलोर बैठे हो, मैं यहाँ होशियारपुर बैठा हूँ, तो आपने मुझे 10,000 ट्रांसफर करने हैं। 10,000 क्या है, एक नंबर सिस्टम, नंबर्स हैं, तो आपने नंबर ट्रांसफर करने हैं। तो बैंक के आप टेलर के पास गए, उसको 10,000 दिए, उसने वहां एंट्री पोस्ट की, एंट्री उसके सर्वर पे गई, सर्वर से क्लाउड सर्वर पे गई, क्लाउड सर्वर से होशियारपुर सर्वर पे आई, होशियारपुर सर्वर से एटीएम में आई, तो एटीएम से मैंने निकाल दिया। तो दिस इज माइनिंग। जब किसी भी एल्गोरिथम को, तो बैंक भी एक एल्गोरिथम चला रहा है, नो डाउट, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन उसको भी कंप्यूट पावर चाहिए। तो आप किसी नंबर सिस्टम को या एल्गोरिथम को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूट पावर आप जब ट्रांजिट करते हैं, तो हम उसको माइनिंग बोल देते हैं आसान भाषा। तो बैंक को भी सर्वर चाहिए उसकी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के, नंबर ट्रांसफर करने के लिए, उसके हिसाब को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बैंक के पास सर्वर है, तो बैंक को सर्वर का रेंट देता है, खर्चा होता है, तो बैंक आपसे फीस चार्ज कर रहा है। लेकिन दिस इज द डिसेंट्रलाइज्ड नंबर सिस्टम, इसको भी कंप्यूट पावर चाहिए जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसमें आपको वो खर्चा कौन देगा, इसके लिए वो सर्वर कौन लगाएगा। तो अगर आपके घर में कंप्यूटर है, तो आप अपना कंप्यूटर इसके नेटवर्क के साथ ऐड कर दो, तो इसका नेटवर्क आपके घर के कंप्यूटर की जितनी कंप्यूट पावर यूज करेगा, एज ए रिवॉर्ड नए क्रिप्टो करेंसी, नए बिटकॉइन आपके कंप्यूटर में पैदा हो जाएंगे एज ए रिवॉर्ड, राइट। तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी होती है वो माइनर के पास पैदा होती है, यूजर के पास पैदा नहीं होती। लेकिन ये अलग बात है कि हर यूजर माइनर ओपनली बन सकता है, उसके पास राइट है। तो लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट होता है, तो दैट इज रीजन के लोग उससे भाग जाते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकली थोड़ा उसको समझे, वो कर सकते हैं, कोई भी इंसान कर सकता है। तो सेम आज बिटकॉइन अगर हमने पैदा करना है आज की डेट में, क्योंकि बिटकॉइन 3 जनवरी 2009 से स्टार्ट हुआ, आज हम बैठे हैं 13 मार्च 2022 में। तो आज हम बिटकॉइन पैदा करें तो कितने में पैदा होगा। तो माइनिंग करने के लिए हमें चाहिए 5 फैक्टर। पहले हार्डवेयर लेके आना पड़ेगा हमें, फिर इंटरनेट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर कूलिंग सिस्टम, क्योंकि जो सीपीयू है वो 55 से बाद ट्रिप कर जाएगा, इसलिए आपको कूलिंग करना पड़ेगा। नॉर्मली हम घर पे कंप्यूटर रखते हैं, हमें पता है इस चीज का। और 5वां फैक्टर है कि आपको या तो खुद एक्सपर्ट बनना पड़ेगा या एक एक्सपर्ट पर्सन हायर करना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें आप इकट्ठी करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे डाला है बिटकॉइन माइनिंग कॉस्ट। तो ये एक इन्वेस्टोपीडिया का डाटा मेरे पास आ गया है, राइट। तो इस डाटे में आप देखें कि सबसे बड़ा फैक्टर 2 है। एक तो है हार्डवेयर कॉस्ट, उसके बाद रनिंग कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखें लिखा है द कॉस्ट टू माइन 1 BTC बेस्ड ऑन द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेट पर कंट्री। तो सबसे सस्ता जो बिटकॉइन है वो अल्बानिया में पैदा हो रहा है $4,000 में। मीन्स अगर आपको बिटकॉइन पैदा करना है, हार्डवेयर लीजिए, अल्बानिया में बिजली सस्ती है, वहां $4,000 में एक बिटकॉइन पैदा हो जाएगा। तो $4,000 क्या है सर, ये बिटकॉइन की माइनिंग कॉस्ट है, बेस प्राइस जिसको बोलते हैं, एमएसपी जिसको बोल देते हैं हम। कि गेहूं की बेस प्राइस होगी, कपास की बेस प्राइस होगी, जिससे नीचे उसकी वैल्यूएशन जा ही नहीं सकती, राइट। तो सबसे महंगा बिटकॉइन पैदा होता है साउथ कोरिया में $26,170 में, राइट, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिसिटी और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा है। ऑन एन एवरेज अगर बात करें हम, $20,000 में एक बिटकॉइन वर्ल्ड में पैदा हो जाता है आज की तारीख में, राइट। अब $20,000 में क्यों पैदा होता है, ये समझने के लिए हम फिर दूसरी जगह जाते हैं। हम गूगल पे लिखते हैं बिटकॉइन माइनिंग कैलकुलेटर या कोई भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कैलकुलेटर। तो ये आपके सामने स्लाइड आ गई। यहाँ पे बिटकॉइन का एक रेट चल रहा है, आज का रेट है अभी करंट $39,147 है। तो यहाँ पे देखें एक हैश पावर आ रही है। हैश पावर मीन्स अ कंप्यूटिंग पावर पर सेकंड, पर मिली सेकंड या नैनो सेकंड में कितनी आती है। तो हैशिंग में जाए तो मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे, यहाँ आप देखें कि डे 1 बिटकॉइन सस्ता क्यों था 2009 में। तब इसका जो एल्गोरिथम था, डिफिकल्टी था उसका बहुत कम था, इसको माइन करना आसान था, ये क्योंकि ये इसका एल्गोरिथम हैश में था। तो ये $1 से कम में पैदा हो जाता था, तो इसका प्राइस उठता था। उसके बाद इसकी माइनिंग किलो हैश में चलेगी, डिफिकल्टी बढ़ गई। इसकी फिर माइनिंग मेगा हैश में चलेगी, डिफिकल्टी और बढ़ गई, रेट और बढ़ गया। गीगा हैश में रेट और बढ़ गया। आज अगर आपने बिटकॉइन माइन करना है तो आपको 40 टेरा हैश का एक सिंगल सर्वर लेके आना पड़ेगा।
इतनी बड़ी कंप्यूट पावर पे चला गया। आज $20,000 का जो पैदा हो रहा है, अब जो प्रोडक्ट $20,000 में पैदा हो रहा है तो उसका ट्रेड प्राइस तो ज्यादा ही होगा डिमांड सप्लाई के लिए। तो दैट इज द मेजर फैक्टर। अब फ्यूचर में आप देखेंगे 1-1.5 साल के बाद क्या होगा कि यहाँ पे टेरा हैश लिखा है, बिटकॉइन पीटा हैश में चला जाएगा। जिस दिन बिटकॉइन पीटा हैश में चला जाएगा, इसका जो माइनिंग कॉस्ट है वो $1,00,000 हो जाएगा। अब जो चीज पैदा $1,00,000 में हो रही है, एग्जीक्यूट $1,00,000 में हो रही है, तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा सर? ऑब्वियसली $1,00,000 से ज्यादा होगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई हमेशा प्लस माइनस होती है। ये बेस प्राइस की बात कर रहे हैं। अब सेम इसके बाद आया लाइट कॉइन, दिस इज लाइट कॉइन, जो 4 साल बाद आया, ये $105 का है। अब ये सस्ता क्यों है? क्योंकि इसका जो एल्गोरिथम है, इसका ब्लॉकचेन 4 साल बाद स्टार्ट हुआ और ये अभी 5 टेरा हैश पे है। वो 40 टेरा हैश पे है, ये 5 टेरा हैश पे है। तो दैट इज द रीजन कि इसका एल्गोरिथम जो है वो अभी माइनेबल, इजी माइनेबल है, इसकी माइनिंग कॉस्ट कम है, तो उसका ट्रेड प्राइस कम है। अब यही हम जाते हैं फिर वापस अपने स्लाइड पे। तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉइन। तो यहाँ पे स्लाइड चेंज होगी सर, स्लाइड चेंज होगी पवन सर? जी हाँ। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट 50% सप्लाई माइन होगी बेटेजो की, वो 18,90,000 है। 18,90,000 जो माइनेबल है, ब्लॉकचेन चल रही है, उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कर रही है, तो वो आगे चलती चलती कॉइन पैदा कर रही है। वो एक ही पूल में पैदा करेगी और उस पूल से आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू माइनेबल कॉस्ट पे ले सकते हैं। इसको 9 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। एक ब्लॉक में 2,10,000 कॉइन है। पहला ब्लॉक जो सोल्ड हुआ वो $3 पे सोल्ड हुआ, तो $3 इज अ माइनिंग प्राइस। अगर आप इसको ट्रेड प्राइस जाननी है तो एक्सचेंज पे जाइए। एक्सचेंज पे इसका रेट अभी भी 4.75 है और हाईएस्ट $9 लगा के आया है। ट्रेड प्राइस फ्लक्चुएट करेगा बट माइनिंग प्राइस फिक्स रहेगा। सेकंड ब्लॉक जो अभी इसका ओपन है, सेकंड ब्लॉक में $4.5 इसका माइनिंग प्राइस है। तो अगर आज आपको 100 कॉइन चाहिए बिटेयू, तो 2 ऑप्शन आपके पास है, या तो पीयर से खरीदिए या एक्सचेंज से खरीदिए लाइव प्राइस पे, या आप इसकी माइनिंग में आ जाए। तो माइनिंग में क्या करेंगे आप कि आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप अपनी मेल के थ्रू स्टार्टअप करेंगे, कितने कॉइन आपको माइन करने हैं, ब्लॉकचेन के साथ आपका डिजिटल एग्रीमेंट होएगा, ह्यूमन इंटरफेस नहीं रहेगी। तो मान लीजिए 100 कॉइन का आपने मिंटिंग एग्रीमेंट बनाया, तो ब्लॉकचेन जैसे जैसे कॉइन पैदा करेगी एल्गोरिथम के माध्यम से, हर 15 दिन में 5% सप्लाई, यानी अगर आपने 100 कॉइन मिंट किए हैं तो हर 15 दिन में 5 कॉइन आपको पैदा होके मिंट होके आपके वॉलेट के अंदर मिल जाएंगे। 10 महीने में आपका 100 कॉइन मिंट होके माइन होके आपके पास पहुंच जाएगा। जो कॉइन आपके पास आ गया वो आपका है, आप उसको होल्ड करें, ट्रेड करें, सेल करें, इट्स अप टू यू, राइट। तो दिस इज द माइनिंग मैकेनिज्म जिसमें हम काम कर रहे हैं, और ये लिमिटेड मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म सिर्फ काम करेगा 18,90,000 जब तक कॉइन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता। जब 18,90,000 कॉइन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये मॉडल खत्म हो जाएगा, सिर्फ फिर एक्सचेंज का ट्रेड मॉडल रह जाएगा। आज जैसे बिटकॉइन की बात करें, 1,90,00,000 बिटकॉइन पैदा हो चुके हैं। तो किसी ने $100 में बिटकॉइन पैदा किया है, कोई $20,000 में बिटकॉइन पैदा कर रहा है, तो जिसने पैदा कर लिया अब दोबारा वो पैदा नहीं होगा, अब तो वो ट्रेड ही होगा। तो ये सेम कोई भी ब्लॉकचेन नहीं की है, तो उसका पैदा करने का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, जो फ्यूचर में ट्रेड बेनिफिट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप सेकंड ब्लॉक में एंटर करेंगे तो $4.5 का रेट है। तो अगर आप एग्जिट की बात करेंगे, मुझे एग्जिट कब करना है, तो तीसरा ब्लॉक ओपन होगा तो $9 पे ओपन होगा, चौथा 18 पे, तो 9th ब्लॉक $900 पे, जो 1.5 साल बाद इसका एग्जीक्यूट होगा, माइनिंग पे आएगा। तो अगर $900 1.5-2 साल बाद $900 इसका माइनिंग प्राइस है, तो ट्रेड प्राइस उससे ज्यादा ही होगा। लेकिन हम 900 के बराबर ही मान ले तो आपको 200 गुना प्रॉफिट हो रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी में आप देखें, बिटकॉइन ने अगर 2009 में किसी ने ₹1 लगाया था बिटकॉइन में, तो आज उसका 1 करोड़ जो है वो 4 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। इतनी ह्यूज मल्टीप्लिकेशन दी है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, यूजर बढ़ते गए, अभी और बढ़ेंगे, उसका 2,10,000 सबको मिलेगा, उससे ज्यादा छपेंगे। तो सेम विद दिस मैकेनिज्म, इसमें भी 37,80,000 लोगों को मिलेंगे, वो भी 63 साल में। इसकी माइनिंग जो है 2063 तक चलेगी, सप्लाई कम है। तो आप 1.5 से 2 साल में $900 के प्रॉफिट तक रीच कर सकते हैं। इट्स अ प्रोजेक्शन कि मिनिमम माइनिंग प्राइस की बात करें 200 गुना आपका प्रॉफिट है। ये अच्छी बात है, प्रॉफिट सुन के सब अच्छे होते हैं, लेकिन हम इसका डार्क साइड भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। हमने 1.5 साल वेट किया, 1.5 साल बाद माइनिंग प्राइस तो $900 मिल गया, लेकिन ट्रेड प्राइस हमें नहीं मिला। इसकी लिक्विडिटी कहाँ जाएगी? हमें लिक्विड कौन करेगा इसका, अगर एक्सचेंजों ने इसका प्राइस नहीं दिया? तो इन दैट केस
आज आपके पास यहाँ पे 50% गोल्ड है। नेक्स्ट ब्लॉक ओपन होते ही आपका गोल्ड सिक्योरिटी 55% हो जाएगा, 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉक 18 पे जाते ही 60% हो जाएगा एंड सो ऑन। $900 तक जाते जाते आपका गोल्ड सिक्योरिटी 90% हो जाएगा आज की वैल्यू का। गोल्ड मिंट होगा जहाँ पे, वो भी ग्राम में, यानी आज की जो गोल्ड की वैल्यू हो उतने ग्राम आपको गोल्ड मिंट हो जाएगा। और 1.5-2 साल बाद अगर आपको $900 या $400 जो भी प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट लेके घर को जाएंगे। अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो आपका जो बेस गोल्ड है वो उसका जो भी उस दिन वैल्यू होगा वो आप USDT या BTC में कन्वर्ट करके आप उसको इनकैश कर सकते हैं, या अगर 20 ग्राम से ऊपर है तो फिजिकल भी आप इनकैश कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म इसके साथ चलेगा। तो नेक्स्ट अगर आप स्टार्टअप में जाना चाहते हो तो इसका स्टार्टअप जो होता है $150 से आप इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। मैक्सिमम $30,000। एक मेल पे एक ही अकाउंट बनेगा, एक ही बार बनेगा, ना वो एडिट होगा, ना वो टॉपअप होगा, ना वो फर्दर किसी एडिशन होगा उसमें, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको दोबारा अकाउंट चाहिए तो नया कॉन्ट्रैक्ट आप बनाएंगे। तो $150 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 150, 1, 2, 3, 4, 5 जो आपको चाहिए वो डाल लो, या जितने कॉइन चाहिए कॉइन डाल लो। लाइव कॉइन प्राइस पे आपका वॉलेट मिल जाएगा। 50% आपको डे 1 गोल्ड सिक्योरिटी मिलती है। 10 इंस्टॉलमेंट, 10 महीने की इंस्टॉलमेंट में आपको टोटल कॉइन माइन होकर आपके पास आ जाता है। और आप अपना गोल्ड जो है वो कभी भी गोल्ड माइन, मिंट एंड मेल्ट कर सकते हैं, राइट। गोल्ड इंक्रीमेंट आपको मिलती है हर ब्लॉक के साथ। स्टार्टअप के लिए आप BTC USDT यूज कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है कि आपको इसमें रेफरल मॉडल है जो 18,90,000 लिमिटेड रेफरल मॉडल में काम कर सकते हैं। आपको कॉइन अच्छा लगा, टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, आपने इसमें ₹100 इन्वेस्ट किए या 100 कॉइन माइन किए, आपने मेरे को रेफर किया, तो मेरे को इमीडिएटली आपको रेफरल बोनस 6%, यानी कि 6 कॉइन माइन होके मुझे इमीडिएटली मिल जाएंगे, जो मैं इमीडिएटली कैश कर सकता हूँ। तो इसका 9th लेवल 18% कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन है मिंटिंग के ऊपर। तो इसमें भी आपको ना तो डबलिंग की कमिटमेंट है, ना कोई आपके साथ क्या बोलते हैं कि कैलकुलेशन डॉलर की कमिटमेंट है। हम सब लोगों ने मिलकर कॉइन पैदा करना है, मिंट करना है, और मिलेगा कॉइन ही, उसको हम कभी भी एक्सचेंज पे जाके USDT या किसी और में कैश कर सकते हैं या बैंक में कैश कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन। सेकंड है हैशिंग बोनस। तो फर्स्ट बोनस है डायरेक्ट, जब आप किसी को रेफर करते हो तो वो जितने कॉइन मिंट करता है आपको 6% पहले लेवल से कॉइन आते हैं। सेकंड लेवल से सेकंड है कि जब उसका कॉइन उसको माइन होके मिलेगा तो हैश बनेगी, तो 6% आपको दोबारा मिलेगा। तो एक ही काम का डबल बेनिफिट है, इंस्टेंट भी है, रेकरिंग भी है। तो ये भी 9 लेवल में आपको 18% आएगा। थर्ड है कि अगर आप 1000 कॉइन BTU 1 शॉट मिंट करते हो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको हार्डवेयर, जो माइनिंग हार्डवेयर वो फ्री मिलेगा, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना। ये हार्डवेयर आपके घर पे काम करेगा। इसका हैश माइनर जितना आपका सेट टॉप बॉक्स है उतना बड़ा है, प्लग एंड प्ले है, इसको आपने सिर्फ प्लग लगा, सारी लीड इसके अंदर आएगी आपको। ये हार्डवेयर लगाते ही आपका माइनिंग सेटअप अलग से ऑन हो जाएगा। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, टोटल मंथली जितना भी कॉइन पैदा हो रहा है उसका 1 से 3% आपको इसका रेवेन्यू आएगा। मतलब मिनिमम 10 कॉइन, मैक्सिमम 30 कॉइन पर मंथ आपको ये माइनर पैदा करके देगा, जब तक नेक्स्ट डिफिकल्टी नहीं आती। तो मोस्टली हम वी कैन से कि 2 साल आपका ये माइनर चल जाएगा। तो आपने पैसे दिए 1000 कॉइन के, वो आपको मिल गए, माइनर फ्री मिला। और माइनर अगर 20 महीने 30 की एवरेज भी चला तो 600 कॉइन, अगर 20 की एवरेज से चला तो 400 कॉइन एक्स्ट्रा आपको माइन होके आपके पास पहुंच जाएंगे, जिसकी वैल्यू अगर 900 से लगाओ तो लगा लो, 400 से लगाओ तो लगाओ, कोई कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि आपने माइनर नहीं लगा पाए ड्यू टू एनी रीजन, लेकिन अगर आपके रेफरल में किसी ने माइनर लगा दिया तो फर्स्ट लेवल पे आपके जितने माइनर होंगे वो जितना कॉइन पैदा करेंगे उसका 6% कॉइन आपको मिलेगा। मतलब मैंने माइनर लगाया, आप मेरे स्पॉन्सर हो, तो मेरा माइनर 20 कॉइन पैदा कर रहा है, 1.2 कॉइन पर मंथ आपको मिलेगा मेरे माइनर बोनस से। सेकंड लेवल पे 3% कॉइन माइन होके मिलेगा। तो सेम 9 लेवल में ये भी आपको 18% कॉइन माइन होके मिलेगा। ये सारा मॉडल, अगेन आई रिपीट, ये सारा मॉडल तब तक काम करेगा जब तक 18,90,000 कॉइन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, जब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ जाता। ये एक दिन में हो गया तो ये मॉडल खत्म, 1 साल में हो गया तो ये मॉडल खत्म। उसके बाद फिर जो आपका कॉइन है वो ट्रेड के लिए ही अवेलेबल रह जाएगा, जैसे बिटकॉइन या अदर कॉइन है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिजिकल गोल्ड अगर आपने कभी भी क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए 20 ग्राम से ऊपर होना चाहिए आपका गोल्ड सिक्योरिटी। 2% इंश्योरेंस फीस आप पे करेंगे पैम्प को, पैम्प के पास ऑर्डर चला जाएगा।
अदरवाइज आप गोल्ड की वैल्यू को कभी भी यूएसडीटी बीटीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 9 लेवल आप अगर आपने रेफरल कमीशन लेना है तो आपको 9 स्पॉन्सर भी चाहिए, डायरेक्ट स्पॉन्सर चाहिए, चाहे मिनिमम अमाउंट की हो। तो वी हैव टू क्रिएट द कम्युनिटी, नॉट द बिजनेस। बिजनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू शेयर ओवर हियर? पवन जी, जैसे आप बोले। सर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो कर सकते हैं। सुमेंदु सर, आपकी जो भी क्वेरी है अभी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं अमन जी से। हाँ सर, 2-3 चीजें। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, थैंक यू वेरी मच। कपल ऑफ थिंग्स सर, वो आपने 9 कॉइन्स बोले थे, वो एक बार आप स्क्रीन पे दे देंगे तो वो हम नोट कर लेंगे। सर आप गूगल कर सकते हैं। मैं अच्छा, टेक्निकली जो ब्लॉकचेन का एल्गोरिथम होता है उसको हम बोलते हैं SHA-256। ओके सर, मैंने गूगल किया था ना, उसमें 12 कॉइन आ रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा वो। हाँ, हो सकता है। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन के 36 फोर्क हुए हैं, वो भी सेम है। वो 36 कंसिडर कर सकते हैं, बट हुआ क्या कि उन 36 कॉइन की आज मार्केट में कैपिटल नहीं है। ओके ओके दैट इज, हम उसको फ्लॉज मानते हैं। वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर गए बट इकोनॉमिक्स डेवलप नहीं हो पाई। ओके ओके, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो 12 आ रहे हैं आप। हाँ 12 गूगल में आ रहा है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। दूसरा ये है कि सर ये जो आप बोल रहे थे माइनिंग करने के लिए, इसमें कपल ऑफ थिंग्स। इफ वी वांट टू माइन द कॉइन्स, उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर लेना पड़ेगा, उसका डिटेल्स वगैरह? जी जी जी, वो मैंने बताया ना, जितने हैश पे उसका नेटवर्क है उतने हैश का हार्डवेयर लेना पड़ेगा। अच्छा, तो वो डिटेल्स आप भिजवा सकते हैं थ्रू सम ईमेल और समथिंग, ताकि हम थोड़ा। आपने कौन सा माइन करना है, कौन सा कॉइन माइन करना है? नहीं, मैं बिटेयू की बात ही कर रहा हूँ। बिटेयू में सर, सी बिटेयू में अभी आप इंडिविजुअल माइनिंग नहीं कर सकते। अच्छा, इट्स अ क्लोज माइनिंग, इट्स अ पूल माइनिंग। तो इसका हार्डवेयर जो अभी है वो फ्री आ रहा है 1000 कॉइन की मिंटिंग के ऊपर। ओके। आप 1000 कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट बनाए, 15 दिन में आपके पास हार्डवेयर आ जाएगा। और ये इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000 कॉइन आज की डेट में अगर बात करें तो $4,500। ओके जी, आज और ये माइनिंग सीखनी पड़ेगी या ऑटोमेटिक होती है? नहीं सर, सी इट्स अ प्लग एंड प्ले। माइनिंग में क्या होता है, दो तरह के माइनर मार्केट में आते हैं। एक होते हैं ओपन माइनर, एक आते हैं पूल माइनर। जो ओपन माइनर है वो आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। ओके। जैसे 8 माइनर आप घर पे लेके आते हैं। 8 माइनर कंपनी है कोरिया की, वो आप घर पे लेके आते हैं। तो आप उसमें जो प्रूफ ऑफ POW कॉइन जितने भी हैं, आप उसको उसमें बिटकॉइन भी माइन कर सकते हैं, लाइटकॉइन भी। आप जो कॉन्फ़िगर करेंगे वो माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पूल माइनिंग में क्या होता है कि जो माइनर आता है वो पीछे से प्लग एंड प्ले होके आता है। जैसे आपने देखा होगा कि US कनाडा में अगर आपके पास आईफोन आता है तो समटाइम वो लॉक होके आता है किसी कंपनी के साथ। यस यस, दैट इज द सेम हियर। यहाँ जो बिटेयू आपको माइनर दे रहा है, ये जो माइनर है ये सिर्फ बिटेयू की ब्लॉकचेन को काम करेगा, दूसरी ब्लॉकचेन के साथ काम नहीं करेगा, लॉक है। गॉट इट सर, गॉट इट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? पवन सर आपको लिंक भेज देंगे। आप अच्छा। अपनी मेल के ऊपर खुद ही कॉन्ट्रैक्टर साइन अप करेंगे, क्योंकि सारा डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई दूसरा आपको हेल्प नहीं कर सकता। सारे Okay. कोड आपकी मेल के ऊपर ही आएंगे। And they will send some physical hardware to my place? यस दे विल सेंड, देयर इज अ हार्डवेयर। आप हार्डवेयर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार कैसा आएगा। जस्ट होल्ड ऑन। सर इसमें ना क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मिनिमम कितने कॉइन हम लोग बाय कर सकते हैं, वो भी आप बता दीजिए। मिनिमम $150, मिनिमम $150 यू कैन इन्वेस्ट, मैक्सिमम $30,000 ऑन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। $150 12,000 रुपए हो गए सर। उसमें आपको 33.33 कॉइन आएंगे। ओके। और ये हार्डवेयर आप क्या बोल रहे हैं कि वो भेज देंगे अभी? क्योंकि सर अभी मैं ये देख रहा था कि अगर एक कॉइन, मैं ये देख रहा था कि अगर एक कॉइन हम एक्सचेंज से लें तो वो 356 रुपीस का आ रहा है। हाँ जी, एक्सचेंज में जो प्राइस है वो 4.75 का है डॉलर का आज की डेट में। तो आप जो बोल रहे थे अभी वो क्या था मिनिमम? आपने कुछ बोला ना? यहाँ पे 4.5 का। 4.5 का है जी, एक्सचेंज का रेट कल को भी बढ़ सकता है, फ्लक्चुएट रहता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई है। ये फिक्स है, इससे नीचे नहीं जाएगा। अच्छा। ये ऐसा माइनर आता है सर, अभी ये स्क्रीन चेंज होगी आपकी।
Yeah. इट्स अ हैश माइनर। So इसके लिए हमें सेट टॉप बॉक्स है वो इसके छोटा लिए है। हमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, अपने आप करेगा। नो सर, आपने सिर्फ प्लग एंड प्ले करना है। उसके बाद आप उसका जो आपका अकाउंट खुलेगा, अकाउंट में जाएंगे तो आपका माइनर आपके अकाउंट के साथ फेच होगा, आपका आईपी एड्रेस वहां शो कर रहा Okay. होगा, माइनर ऑन हो तो- आपका शो करेगा, आपका माइनर तो सर मेरा ना एक फंडामेंटल क्वेश्चन क्वेश्चन है, सॉरी मैं थोड़ा जी। ज्यादा पूछ रहा हूँ। नहीं कोई पूछिए। क्यों अगर इट इज सो इजी टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट, गेट दिस हार्डवेयर एट योर होम, हाँ, और इसको प्लग एंड प्ले है, तो मतलब आप तो कह रहे हो लिमिटेड सप्लाई है बिकॉज दिस इज प्रूफ ऑफ वर्क, राइट? जी तो और ये लॉन्च किए हुए कितना टाइम हो गया सर? 1 ईयर। 1 ईयर। तो अगर प्रूफ और इट्स नॉट दैट कॉस्टली आल्सो, तो अभी तक तो बहुत लोगों ने कर लिया होगा और तो फिर वो खत्म हो गया होगा। नहीं सर, पैदा नहीं हुआ ना अभी तक, क्योंकि इसका एल्गोरिथम जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन सारा पैदा नहीं हुआ ना अभी तक। जब तक 2,10,2140 तक बिटकॉइन की माइनिंग चलेगी, इसकी माइनिंग 2063 तक नहीं चलेगी। सर, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, सॉरी जी, मैं जी। थोड़ा सा फंडामेंटली समझ नहीं पा रहा हूँ। मान लो इट इज सो इजी, ओके, तो जी। इतने पैसे तो कोई भी इन्वेस्ट कर देगा, 4-5 हजार डॉलर। सो लेट्स जी, से बहुत सारे लोग इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और दे स्टार्ट माइनिंग एट देयर होम, तो इसमें तो वो होगा ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले माइन कर दे उसका हो जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं कि हमने कर लिया और फिर मतलब हमारे मतलब नंबर नहीं आया हमारा, कोई और माइन करके चला गया और इन्वेस्टमेंट नहीं चला नहीं गया। सी मैं ऐसा सिंपल नहीं सवाल है। पूछ रहा हूँ कि आपने नहीं, किया, नहीं, पवन जी ने किया, किसी और ने किया और मैंने भी किया, और आप लोगों जी। के माइनर ने पहले माइन कर दिया और आप लोगों का हो गया, तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि नहीं, लिमिटेड possible सप्लाई नहीं है। ना अगर सर, वो अनलिमिटेड होता तो अलग बात है। वो आप जाएंगे ब्लॉकचेन पे, हम्म। क्योंकि वो ब्लॉकचेन में यही तो खासियत है ना, आपका नंबर जो अलॉट हो गया वो आपके पास पहुंचेगा। ब्लॉकचेन काम करेगी, ह्यूमन काम नहीं करेगा ना। ये मैं इसको एक मिनट ब्लॉकचेन में आपको ले चलता हूँ। बिट एयू चेन, तो यहाँ जो है ना वो ब्लॉकचेन ही काम कर रही है। दिस इज ब्लॉकचेन। अभी देखिए हर 6 मिनट में 24 बिट एयू पैदा हो रहे हैं, और 3 महीने बाद ये 12 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे। तो इसकी सप्लाई लिमिटेड है ना, और आपको जो सप्लाई बन रही है उसी का कॉन्ट्रैक्ट तो आप बना रहे हो, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी के पास जाएगा, दूसरा कोई ले ही नहीं सकता इसको। आप दूसरा कैसे लेगा? अगर आप अपना कॉइन एक्सचेंज पे सेल करोगे तो कोई दूसरा लेगा, अगर आप सेल नहीं करोगे तो दूसरा ले नहीं सकता। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम माइनिंग हम एक्सचेंज से भी ले सकते हैं बेसिकली अभी, राइट? डेफिनेटली इफ समबडी वो सेल ओवर देयर यू कैन बाय फ्रॉम देयर। ओके, दोनों ऑप्शन है। लेकिन माइनिंग में बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आज आपने 100 कॉइन यहाँ पे मिंट किया, राइट, कल को एक्सचेंज का रेट $9 हो गया, $90 हो गया, आपको फिर भी मिंटिंग प्राइस पे ही रेट मिलेगा। मतलब आपको मतलब किसान के खेत से ही गेहूं मिलेगा, मंडी समझ वाला गया, रेट आपको नहीं मिलेगा। समझ गया। सर मेरा एक बेसिक क्यों दिखा क्वेश्चन रही है है। आपकी साइट? जी सर जी। एक क्वेश्चन मेरा है, ये नोट सिक्योर क्यों दिखा रहा है? ये लिमिटेड वर्जन है क्या साइट का आपके? लिमिटेड वर्जन नोट सिक्योर है सर साइट आपकी, HTTPS नहीं है, क्यों ये शो नहीं कर रही है HTTPS? कहाँ? ये वाली बिटयू चेन, जी जी ये नॉट सिक्योर जो आ रहा है। हाँ, नोट सिक्योर जो साइट सिक्योर सर- रहती है उन पे HTTPS आता है। सर जितनी भी सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट्स होती हैं जिसका एडमिन किसी के पास होता है, वो आप सर सिक्योर मेरा कर क्वेश्चन सकते ये हो। है, ऐसा तो नहीं कुछ टाइम बाद जो है ये साइट बंद हो जाए? सर ब्लॉकचेन कभी कोई और बंद नहीं इसकी हुई है। माइनिंग वगैरह जो आप बिटचेन जो दिखाए हैं वो blockchain.com पर नहीं शो है, सिर्फ यही है, ऐसा क्यों? हाँ सर मैं बताता हूँ, जो ब्लॉकचेन है ना वो कभी भी बंद नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू बंद हो सकती है। ठीक है, तो सर अब ये बीट एयू वहां भी तो शो होनी चाहिए, हाँ जी, क्योंकि सर ये भी तो क्रिप्टो करेंसी है ना एक, जैसा हाँ, आपने बिल्कुल, हमें बिल्कुल सर। समझाया। बिल्कुल 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 क्रिप्टो करेंसी है सर। ये देखो, ये इसका जो एडमिन दूसरी साइट है, डिस्ट्रीब्यूशन साइट है, वो सिक्योर्ड है। ये ब्लॉकचेन साइट है, क्योंकि ब्लॉकचेन तो कभी हैक हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको सिक्योर नहीं किया गया। ब्लॉकचेन ओपन सोर्स होती है, जो मर्जी देख लो, उसे जो मर्जी पढ़ लो, गिटहब में सारा कुछ ओपन सोर्स है। इसमें अब आज तक ब्लॉकचेन कोई हैक हुई नहीं, इसको ओके जरूरत सर। नहीं है। लेकिन इसके बाद जितनी भी अदर इनकी साइट्स हैं, जैसे डोमेन साइट्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स हैं, वो सारी सिक्योर्ड है। .com वो सिक्योर्ड होगी सारी। जहां आपका लॉगिन इंफॉर्मेशन होगा वो, यहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन होगा ब्लॉकचेन का, वो सिक्योर्ड नहीं होगी, उसकी जरूरत ही नहीं है। माइट भी जो मेरे पास एक क्वेश्चन, मैं
इसलिए हो सकता है, अदरवाइज मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ब्लॉकचेन को सिक्योर करने की जरूरत नहीं होती। सर मैं अगर जी कुछ साइट जो है वो दोनों उनका 1 साल के लिए और फ्री, तो जो डोमेन होती है .io .co एवरीथिंग .xyz कुछ भी हो सकता है। जी 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 सर, हाँ, अगर तो डोमेन, मैंने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर डोमेन बंद भी होते हैं किसी ब्लॉकचेन के, तो गिटहब पे जाइए आप, वहां पे जो उसका नोड होती है ना, वो आप अपने अपने डोमेन पे चला सकते हैं टेक्निकली। आप उसको अपने डोमेन पे चला सकते हैं, आप उसको किसी को भी उठा लिए। अगर आपने बिटकॉइन की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको ब्लॉकचेन पे जाने की जरूरत नहीं है, ब्लॉकचेन थर्ड पार्टी है। आप बिटकॉइन के सोर्स कोड पे जाइए, सोर्स कोड उठाइए, अपना डोमेन लीजिए, वहां पे उसको चला लीजिए। तो इसी को तो ओपन सोर्स बोलते हैं। हाँ, तो सर बिटकॉइन का तो गिटहब पे अपना सोर्स कोड है, तो BitAU का है। बिल्कुल सर, आप ये लीजिए, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। यहाँ अमन जी अपना लैपटॉप, अमन जी अपने लैपटॉप की एक बार चार्जिंग चेक कर लेना। ओके ओके सर, चार्जिंग ओके। उधर अंदर पे जा, ये BitAU चेन मैंने गूगल पे लिखा, ठीक है जी। ये गिटहब पे जाइए, ये गिटहब खुल गया, फर्स्ट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। C++ में मशीन लैंग्वेज बना है, किस लैंग्वेज में डेवलप है, क्या कोड है, नोड है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4 क्वेश्चन और है पर मेरा, ये जो आप बता रहे हो इसकी लिमिटेड सप्लाई है जी। तो हम कहीं चेक कर सकते हैं कि इसकी सप्लाई कितनी मतलब आ चुकी है मार्केट में? बिल्कुल सर, इसका सोर्स कोड निकालिए। ओके, सोर्स कोड निकालिए, सोर्स कोड निकालिए, वहां जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा डेवलपर ने, ठीक है। ये BitAU कोर में जाइए, ये सोर्स कोड है, इसका सोर्स कोड फाइल को ओपन कीजिए, राइट। इसके अंदर सारी फाइल ओपन कर सकते हैं, तो इसमें बेस फाइल आएगी, उसमें इसकी सप्लाई लिखी होगी। बेस फाइल कौन सी है, एक मिनट में निकालता हूँ। चेन पोर्ट, एक सेकंड। ये देखिए इसकी कोडिंग आ गई, जो एग्जीक्यूशन रन आ गई, इसकी कोडिंग आ गई, इसमें लिखा होगा ये टाइम स्पेंट आ गई इसमें। ये देखिए इसका BBC 14 मार्च 2021 को ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई। ब्लॉकचेन के अंदर टाइम स्पेंट होती है, तो इसके बाद इसमें सप्लाई लिखी होगी। एक मिनट सर, मेरा एक फंडामेंटली और छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया ये पूरा, और इट्स लुक्स लाइक अ वेरी इफेक्टिव टूल्स, बट जी। अगर इतना एडवांटेज है इसका और पूरे देश को इतना फायदा हो सकता है, इसको इन्फ्लेशन भी कम हो सकता है, बहुत कुछ है इसमें, तो ये गवर्नमेंट इसको प्रमोट क्यों नहीं कर रही? और दूसरी बात कि अगर इसको हम ट्रेड करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इसमें इन लोगों ने सब क्लोजेस डाले हैं कि आपका अकाउंट ये होगा वो होगा, तो ये सब क्यों है और ये क्यों नहीं हो रहा है, और ये गवर्नमेंट इसमें अपोज में क्यों है? पास नोट इसके पहले मैं क्वेश्चन ये देखिए सर, इसकी एडवांटेज तो हमने देखे सर, आपने सर बताया। आप, इसका क्वेश्चन सिंपल है, आप गवर्नमेंट को पूछो कि भाई साहब जो नोट छाप रहे हैं उनकी आप ओपन सोर्स कर दो, कितने छाप रहे हैं, बात खत्म होगी। हमें बिटकॉइन की जरूरत ही नहीं। लेकिन वो गवर्नमेंट सही है, अपने आप को अमीर हम करने तो के लिए, इनके ऊपर हम नहीं जा सकते गवर्नमेंट के ऊपर, जी जी लेकिन बात ये है कि हमको अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये जब तक हमको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी ये बारे में, तब तक हम इसमें कैसे अंदर एंटर हो सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर गवर्नमेंट ने अब तो सपोर्ट कर दिया है, आप टैक्स पे कर दो, बात खत्म। टैक्स तो हम पे ही कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। सवाल वो है कि इस जो सस्पिशियस चल रहा है ना ये इसके बारे में। नहीं सर, वो ये अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी आज तक बड़े से बड़ा जो आईटी हब्स हैं, या लाइक हम बात करें कि TCS है, दे आर स्टिल, वो भी अभी देख रहे हैं कि है क्या टेक्नोलॉजी है क्या। क्योंकि मैंने जो आपको दिखाया, ये मैं फाइनेंस से भी हूँ, मैं IT से भी हूँ, दैट इज मैंने उस पर्सपेक्टिव से आपको दिखाया।
हर इंसान इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाएगा। टेक्निकली ब्लॉकचेन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जहां पे डाटा ब्लॉक्स में रखा जाता है और डाटा स्टोर एंड सिंक होता है, बस और कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन इससे बड़ी कोई सर मेरा एक rocket science नहीं। क्वेश्चन है सर एक जी, मेरा जी। क्वेश्चन है, बिट AU कौन कौन से एक्सचेंज पे ट्रेडिंग हो रही है इस बिट कॉइन पे? सर एमिरेक्स पे ट्रेडिंग अवेलेबल है, सर कॉइन DCX पे? अभी नहीं है सर। ये देखिए मैंने गूगल कर दिया तो सर BitAU, ये मतलब आप लोगों का ये प्रोजेक्ट है, तो आप लोग सोच रहे हैं वो बिट कॉइन DCX पे या बाइनेंस पे लाने के लिए, इसे लिस्टेड कराने के लिए? क्योंकि सर कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप पे ये शो नहीं हो रहा है, और वहां पे हर कॉइन हो जाता है जो लिस्टेड हो जाते हैं। कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप पे हर कॉइन शो हो जाता है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, ये बट शो नहीं हो रहा है। तो सर कैसे एक मिनट मतलब? सर, उनका कोई नेट का इशू है, एक मिनट सर, वो भी रिकनेक्ट कर रहे हैं, वेट करिए। ओके सर। Guys, excuse me, मैं अभी सबकी डिस्कशन सुन रहा था। जी जी प्लीज टेक योर क्वेश्चन वन बाय वन। मतलब हाँ। आप एक क्वेश्चन भी खत्म भी नहीं हो रहा होता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो बीच में प्लीज हैव पेशेंस टू हियर इट आउट। ये सेशन विल बी देयर विद यू, कोई बात नहीं, आपके डाउट्स सारे क्लियर होंगे। इट इज जस्ट आई फाउंड हिज नॉलेज टू बी गुड, सो वी आर शेयरिंग। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन in one by one. Thank you. अमन जी अभी आप बोल सकते हैं सर। जी जी जी। तो दिस इज ऑन कॉइन मार्केट कैप, दिस इज और Binance ऑल्सो, लेकिन Binance ने अभी ट्रेड स्टार्ट नहीं किया, टेक्निकल लिस्ट हो चुका है। ट्रेड के लिए ये एमिरेक्स पे है, एमिरेक्स में सर्च कर देता हूँ। अदरवाइज वर्ल्ड की हर लीडिंग एक्सचेंज इसको लिस्ट कर चुकी है। सी इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट, तो थोड़ा उस पर टाइम लग रहा है, लेकिन स्टिल अभी ये बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुका है। ओके सर। EMIREX एमिरेक्स, ये दुबई का एक्सचेंज है एमिरेक्स, एंड BitAU इज देयर। फर्स्ट लिस्टिंग इस पे हुई है अभी, 1 महीने बाद एक और लिस्टिंग इसकी आ रही है, और 1 साल के अंदर ये हर एक्सचेंज में हो जाएगा। तो ये एमिरेक्स पे, यहाँ पे आप BAU सर्च करें तो ये USDT पेयर है, 4.70 का रेट है आज का। सर अगर आप सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी सर आप कह रहे हो कि ये एमिरेक्स पे, चलो मान लिया एमिरेक्स एक अननोन एक्सचेंज है, अगर आप इसका 24 आवर वॉल्यूम देखोगे तो सिर्फ 424 BTC का है। हाँ हाँ बिल्कुल कम है। इसमें अगर आप अपने कॉइन की वॉल्यूम देखोगे तो 0 आ रहा, अगर आपको सामने बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी मैंने बोला है सर आप बाइनेंस की बात कर रहे हो, बाइनेंस और एमिरेक्स में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ये कह लो कि आप एमिरेक्स अगर KG क्लास है तो बाइनेंस +2 है। जी जी बिल्कुल। तो आप बिल्कुल जो आप बोल रहे हो ना कि बाइनेंस पे इसकी इंटीग्रेशन हो गई है या लिस्ट हो जाएगा, मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता आज की डेट में। मैंने बाइनेंस खोल दिया सर आपके सामने। नहीं, ये बाइनेंस पे तो ये सब कुछ आएगा, बाइनेंस पे वो सब कुछ आएगा जो कॉइन मार्केट कैप पे आता है। जी 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 वो बाइनेंस पे आएगा। ये आपका बाइनेंस सिर्फ ये खोलने से बात नहीं बनती, इसमें तो हर एरा मतलब कॉइन आपको लिस्ट, टोकन सब कुछ लिस्ट हुए दिखाई देंगे। ठीक तो है। आप ये तो कह ही नहीं सकते ये तो मैं भी डाल दूं, मैं अपना मेरा नाम अगर अंकुश है, मैं कल अंकु कॉइन करके डाल दूं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी मैं बाइनेंस पे यहाँ पे लिस्ट करवा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये ना मुझे दिखाओ, मैं आपको टेक्निकल चीजें बताता हूँ 2-3। जी जी जी। आपकी कोई गिथअप पे एक्टिविटी नहीं है सिंस अप्रैल 13, 21। जी जी। आपके गिथअप पे सिर्फ 3 फॉलोअर हैं जी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक MLM स्कीम के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपकी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे कोई एक्टिविटी नहीं है अदर देन अप्रैल मई 21। आप 1 साल से करके आ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और आप अगर आप ये जो BitAU कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने जो रोड मैप है दैट इज ओनली अपग्रेडेड अप टू Q4 21। उसके बाद आपका कोई रोड मैप ही नहीं है। नहीं, बस एक चीज लास्ट में इन्होंने पेंडिंग है, वो है वॉलेट। बाकी सब कुछ हो चुका। देखिए मैं अगर डॉक्टर हूँ, अगर मैं सर्जन हूँ, तो आई हैव टू हैव ए रोड मैप। मैंने जो चीज सीख ली वो सीख ली, अगर मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा तो आई विल बिकम आउटडेटेड।
आपका 22 का कोई रोड मैप ही नहीं है। रोड मैप तो पहले निकलता है ना। रोड मैप किस चीज का होता है सर? कैसे रोड मैप, कैसे आप मतलब आप क्या चीज प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं बिट एयू से? क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना सर चाहते हैं? बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हर बिटकॉइन क्या प्रॉब्लम cryptocurrency का सॉल्व ना कर रहा है, लाइटकॉइन क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? सर वही वो बोल रहे हैं हर क्रिप्टो करेंसी एक आज प्रॉब्लम मार्केट सॉल्व करता है। में 99.9% टोकन आ रहे हैं। टोकन क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? नहीं, किसी जो आप कह तो हम बिट एयू ले क्यों ना? अगर मैं लाइट हम बिटेयू अगर क्यों उसका लें? बिल्कुल, ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि मैं बिटेयू क्यों लूं या मैंने बिटेयू क्यों लिया। एक सिंपल फैक्टर है। तो सर आज की डेट में एवरीबॉडी जो है वो ग्रो करना चाहता है, तो वो अपनी कैपिटल को एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म में या पोर्टफोलियो बनाता है, राइट? क्रिप्टो करेंसी से पहले हमारे पास पोर्टफोलियो थे, मतलब लैंड के, गोल्ड के, स्टॉक्स के, ये पोर्टफोलियो थे। क्रिप्टो करेंसी में अब एक नया पोर्टफोलियो बनना शुरू हो गया कि लोग क्रिप्टो करेंसी में पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। लोगों के पास बिटकॉइन भी है, बट बिटकॉइन आज बाइंग कंडीशन इंडियन लोगों या आम इंसान के, नए इंसान के लोगों के बाइंग कंडीशन में नहीं है, राइट? उसके बाद लाइटकॉइन आया, लोगों ने वही पोर्टफोलियो बनाया। मेरा पोर्टफोलियो आज 12 कॉइन का है, राइट? तो मैं एक आपको ऑफर दे रहा हूं कि ये एक नया टूल मार्केट में आया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पोर्टफोलियो में इसको जगह दो, नहीं अच्छा लगता तो आप कोई दिक्कत नहीं, ओपन सोर्स। नहीं तो कोई सर, दो राय है देखिए, नहीं सर। नहीं ऐसा नहीं है। आप मतलब किसी भी क्रिप्टो का यूज केस होता है, लाइटकॉइन का भी यूज केस है, बिटकॉइन का भी यूज केस है, इथेरियम का भी यूज केस है। अगर आप कह रहे हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू लाइटकॉइन, तो मैं लाइटकॉइन लूंगा जो कि एक ऑथेंटिक कॉइन है, सभी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, हमें पता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला। सर अगर आप बात करें, देखिए एक्सचेंजेस तो क्रिप्टो के मॉडल के अगेंस्ट ही हैं। क्रिप्टो का मॉडल तो P2P है, एक्सचेंज का मॉडल P2P है, नहीं है? तो फिर अगर मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ ये P2P की बात कर रहे हो तो मैं रिपल ले लूंगा। नहीं, मैं रिपल क्रिप्टो नहीं है, रिपल क्रिप्टो ही नहीं है। रिपल की अलग से ब्लॉकचेन है अपनी। अगर आप कह रहे हो कि वो एक्स्ट्रा फास्ट है, अगर आपका कॉइन जो है एक्स्ट्रा फास्ट है आपके ट्रांसफर में, ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इस टॉपिक के लिए आप फिर पर्सनली बैठिए, फिर हम पूरा गिटहब सारा खंगाल लेंगे। एक और जो मुझे एक्सचेंजेस तो 5 साल बाद आई क्रिप्टो के। बिटकॉइन 2009 में आ गया, एक्सचेंजर तो बाद में आए। आपका किसी एक्सचेंज पे अकाउंट है? मेरी सभी एक्सचेंज, यू नेम इट, आई हैव अकाउंट ऑन एवरी एक्सचेंज। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आप कह रहे हो कि बिटेयू, जिसने इथेरियम को फाउंडर है, उसने बिटेयू भी फाउंड किया है। नहीं, इथेरियम को फाउंडर नहीं है सर। एंथनी हेस्टन की बात कर रहे हो? एंथनी हेस्टन इज अ राइटर, को फाउंडर नहीं है। एंथनी हैज अ राइटर, ही रोट so many books on cryptography, blockchain. He's a blockchain expert, cryptography, but he did not make any cryptocurrency in the world. He just script down this idea. उसने ये आइडिया स्क्रिप्ट डाउन किया है और जर्मन डेवलपर ने इसको डेवलप किया है। देखो, आपने अपनी टीम में बिटेयू की साइट पे अगर जाएंगे, आपने अपनी टीम में सबसे पहला जो नाम लिखा हुआ है ना, एंथनी हेस्टन का लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, राइट? तो वो आपका कैसे, मतलब आई मीन कि हाउ ही इज लिंक्ड टू योर बिटेयू? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं भी एक यूजर हूँ आपकी तरह। नहीं, फिर आपको, अगर आप इफ यू आर, मेरे पास जो टीम आ रही है जर्मन से आ रही है, अभी नेक्स्ट वीक अवेलेबल है। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं या AMA में आपकी उनसे डायरेक्ट करवा सकता हूँ। सर एक क्वेश्चन मेरा, ये बिटेयू कौन सी कंट्री का मतलब कॉइन है ये? सर टेक्निकली कॉइन सारे यूनिवर्सल होते हैं, जहां इंटरनेट चल रहा है वही कॉइन होता है। सोर्स ऑफ बिटकॉइन का भी आज तक पता नहीं, लेकिन बिटेयू जो है जर्मन डेवलपर्स की तरफ से मार्केट में आया है। सर आप बता रहे को फाउंडर, तो को फाउंडर मतलब जर्मन से लॉन्च हुआ ये? नहीं, जो को फाउंडर है वो अमेरिकन है। वो बेसिकली क्रोशियन है। दोनों साइंटिस्ट अमेरिका में उन्होंने काम किया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आ रही है। और उसके बाद जो है अभी आफ्टर रिटायरमेंट कहाँ पे है मुझे भी नहीं पता। सर खरीद कहाँ सकते हैं ये? एमिरेट्स से, या आप इसके ब्लॉकचेन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। सर बस इतना बता दीजिए, जैसे अभी अंकुश जी पूछे थे, by what time will this coin be available in known exchanges like CoinDCX, Coinbase, ऐसे एक्सचेंज में कब तक आ जाएगा? हाँ, ये इट्स अंडर प्रोसेस। जो हम देख पा रहे हैं, जो हमारी बात हो रही है, विद इन दिस ईयर इट्स अवेलेबल ऑन ऑल द एक्सचेंजेस, जो भी आप बोल रहे हैं। हाँ, इस साल के अंदर, क्योंकि ब्लॉकचेन को एक्सचेंज के साथ जोड़ने के लिए सर टाइम लगता है, टोकन को जोड़ने के लिए टाइम लगता है। सर एक और चीज जो अंकुश जी पूछे थे, जैसे एक और चीज अंकुश जी पूछे थे कि हर क्रिप्टो करेंसी का ना एक पीछे एक यूज केस होता है। फॉर एग्जांपल इथेरियम का यूज है स्मार्ट एप्स को इंटीग्रेट करना,
ठीक है, तो वैसे यूज केस क्या है इसका? कैन एनीवन इन योर टीम सेंड अस सम? फिर वही बात, अगर हम टेक्निकली बात जाएं, इथेरियम क्रिप्टो ही नहीं है सर, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां सर वही मैं कह रहा हूँ, सारे जो तो इसका सर यूज केस है बार्टर विद द बैक बाय गोल्ड, कि आपका गोल्ड बैक, मतलब कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी आती है उसमें हम प्लस तो हो सकते हैं, माइनस ना हो, इसका मैकेनिज्म क्या है? तो इसमें सिर्फ गोल्ड तो मैं एक सवाल पूछूं आपसे जी। तो मैं एक सवाल पूछूं, जो होल्डिंग अथॉरिटी है, जो ये गोल्ड होल्ड कर रही है, इसका नाम आपने लिया, मैं भूल गया जी जी, उसके पास जितना गोल्ड है जी राइट, जी, दैट उस गोल्ड का लिमिट डिफाइंस द सप्लाई ऑफ दिस करेंसी राइट? Yes, मतलब अगर उनके बिल्कुल, पास बिल्कुल। हाँ, बस इतना ही पूछना था। सो बिल्कुल, बेसिकली देयर इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑन दैट होल्डिंग बिल्कुल अथॉरिटी, सर, बिल्कुल। वो होल्डिंग अथॉरिटी कल के डेट में बैंकरप्ट हो गया तो ये क्रिप्टो करेंसी जीरो हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकल बात एग्री करता हूँ, इससे एग्री करता हूँ सर, ये बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट क्योंकि यहाँ पे ये पावर जो है वो आपके वॉलेट के अंदर ही रहती है कि आप उसको एनी टाइम लिक्विडेट कर लो। अब अभी आपने $100 डाला, $50 अभी लिक्विडेट कर लो। यहाँ पे सर आपको सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज है जो मैंने समझी है, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी प्लस माइनस हमेशा रहेंगी, कोई ना कोई लूपहोल रहेगा, मैं मान रहा हूँ जब, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक चीज है वो आप कैलकुलेट करो कि यहाँ कैलकुलेशन फ्लॉज नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो वो यहाँ पे एक जिसको हेजिंग किया वो अच्छे से किया है। दैट इज द रीजन कि क्रिप्टो पोर्टफोलियो में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं और करवा रहे हैं, और इसका पीछे कोई नहीं यूज केस। कल कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट द क्रिप्टो कॉइन साइड, आई एम ए यूजर एज लाइक यू। तो जितना मैंने स्टडी किया मैं उतना ही आपको बता पाऊंगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन बताने के लिए मुझे फिर आपको कनेक्ट पड़ेगा एएमए के लिए, सीधा जो डेवलपर्स हैं राइट, उसके साथ सर कनेक्ट करना मेरे पड़ेगा। सवाल खत्म हो गए, थैंक यू जी जी सर अगर हमने इसको माइन कर लिया, हम कहाँ पे लिक्विडेट कहाँ पे कर सकते हैं इसको? सर जिस एक्सचेंज पे लिस्ट है वहीं पे लिक्विडेट कर सकते हैं। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो आपकी जो लिक्विडिटी है वो जीरो दिखा रहा है एक्सचेंज पे। लिक्विडिटी जीरो वहां पे इसलिए है कि वहां डिमांड सप्लाई अभी हो ही नहीं, प्राइस कोई बेच नहीं रहा, कोई खरीद नहीं पा रहा है। आप वहां पे ऑर्डर लगाइए, लिक्विडेट होगा, हम ऑर्डर लगा रहे हैं, लिक्विडेट होता है। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी इसमें लोग होल्डिंग पे हैं ज्यादा, और अभी इसका वर्कआउट भी इतना ज्यादा नहीं हुआ। आप टोटल देखिए, किसी पे भी जाइए, सारा इसमें लाइव है, इसमें कोई कितने कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, कितना कॉइन माइन हुआ, सब लाइव देखिए। अभी तक टोटल जो सप्लाई है वो 3,44,000 कॉन्ट्रैक्टेड साइन, मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक सप्लाई और डिमांड के लिए आपको और प्रमोशन इसका जोर शोर से करना पड़ेगा। डेफिनेटली सर, वही तो कर रहे हैं आज, उसी का तो पार्ट है। हाँ, तो कम्युनिटी सर जितनी बड़ी होगी उतना ही तो बड़ा होगा, हर चीज कम्युनिटी के साथ होती है, वैल्यूएशन कम्युनिटी देती है। आज बिटकॉइन की कम्युनिटी है, इथेरियम की कम्युनिटी है, उनको 10 साल लगे, ये तो 1 साल का बच्चा है, क्योंकि सर वो ट्रस्टेड है। जी सर, नहीं सर ट्रस्टेड तो आज है ना, ट्रस्टेड तो आज है ना, और दो सर ट्रस्टेड आज है, पहले दिन कोई ट्रस्टेड नहीं होता। मैं 2012 से बिटकॉइन समझा रहा हूँ लोगों को, आज जाके समझने लगा, अभी भी लोगों को समझ नहीं लगा पूरा। अभी लोग इसको पॉन्जी बोलते हैं, इंडिया में झुंझुनू वाला अभी भी इसको पानी का बोल रहा है। उसने अपना खुद का पेपर वॉलेट निकाला, वर्क टू वर्क जो आपने दिखाया कैसे काम करता है, यही चीज है सर, हम इसीलिए बोलते हैं कि पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो पे काम करो, क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाना आपके लिए जरूरी है। सर आप पेपर wallet.org पे जब जाओगे ना जी, तो इसका एक जिप फाइल आती है गिटहब पे, जी जी, वो आपको पूरा देता है जी, देने के बाद इस पे एक HTML फाइल है .html जिसमें कोडिंग्स होती है, जी जी, उसमें जावास्क्रिप्ट लिखी गई है लैंग्वेज। जी जी, जब आप अपना फायरफॉक्स नेट वगैरह हर चीज ऑफ कर दोगे, जी जी, उस HTML फाइल को ओपन करोगे ना तो फायरफॉक्स पे खुल जाता है जो ब्राउजर है। ओके, और उस पे जो है एक मतलब 3-4 जगह ऐसी कुछ न्यूमेरिकल या वो हाथ वगैरह फिगर्स को करोगे ना आप, ऑटोमेटिक उसका वॉलेट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो वो तो ना हमारे नेट से कनेक्ट हुआ ना कहीं हुआ लिंक हुआ, तो हमें उस पर ये भी श्योरिटी मिल जाती है कि ये कहीं हमारा वॉलेट लीक भी नहीं हुआ। मैं उसका पेपर प्राइवेट वॉलेट की बात कर रहे हैं की दोनों मिल जाते हैं सर, पेपर वॉलेट की बात कर रहे हैं तो सर इसका भी तो होना चाहिए ऐसा कुछ। हाँ, ये क्वेश्चन आपको याद है, इसकी ऐसी कोई कोडिंग है आपकी जो C++ में या जावा में है, बिट प्राइवेट की और जनरेट पब्लिक की करनी हो, ऐसा है कुछ? वो शो करो आप हमें। आपको पेपर वॉलेट का आंसर चाहिए, वो मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे अपना मेल आईडी दो, मैं सारा भिजवा दूंगा।
वो मेरे पास नहीं। ओके सर। हाँ, पेपर वॉलेट का मिल जाएगा। गाइस अभी आप सब मेरी बात सुने, सब मेरी बात सुने। Okay. Please control your emotions, one. Number two, please mute yourself, sir. I'm the host. I'm still the host. मैं गाड़ी चला रहा हूँ पर साथ साथ में सुनता जा रहा हूँ. Now please listen to me. ना मैं आपको इसको बड़े कॉमन पैरेलल्स में समझाता हूँ. We all have blue chip stocks. हम स्टॉक मार्केट में सारे कहते हैं. We have blue chip stocks. We have futures. We have options. We have penny stocks. You consider BitAU as a penny stock. अगर कल को आपके सीधा पड़ गया तो यही होएगा. Had you invested 10,000 in BitAU way back in 2022 and 2032 में आपने 10 करोड़. So this is how you should take it. So I will request everybody to kindly be little controlling their emotions. थोड़े से aggressive ना हो and let the session go out in a very cool manner. I'm still very thankful. Most of us didn't know even concept of crypto till I had not met Ankush. I had not met Dr. Ravinder Malhotra and Amandeep Sahota. So please, I'm very thankful. They have shared a lot of knowledge. This increases our knowledge also. So Amandeep ji, अब आप carry on forward करें. मैंने अब जरा रुकना है 10 मिनट के लिए. ओके जी. जी सर, तो वो मैं इन्फॉर्मेशन आप मेल आईडी शेयर कर दीजिए पवन जी के साथ. उस मेल आईडी पे आपको पेपर वॉलेट का सारा वो निकाल के मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए. मुझे सारे वो निकालने पड़ेंगे और गिटहब पे जाके आप भी निकाल सकते हो, या मुझे पूछना पड़ेगा अपने सीनियर से. ओके सर, ठीक है. मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं गिटहब का कोडर ही हूँ. वाह, ग्रेट. ठीक है सर, तो ये चीज मैंने उसमें देखी नहीं अभी. नहीं, कोई इशू नहीं. हमें भी आंसर मिल जाएगा आपकी वजह से. नो इशू. मैं रूबी, पाइथन, जावा, CS++ सब कोड यूज करता हूँ. गुड, ग्रेट. बेसिकली मैं जो है लिनक्स यूज करता हूँ. ओके. विंडो ऑपरेट नहीं करता मैं जानता. ओके. बेसिक कोड लैंग्वेज लिनक्स जी. तो पवन जी. यस सर जी, तो सर का क्वेश्चन मेल आ जाएगा. इनको मेल, वो पेपर वॉलेट कहाँ पे है वो मेल में करवा. बाकी ठीक है सर, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना सर. जी. चलें सर, एनी क्वेरी किसी के है तो वो ले लें, तो क्लोज करें सेशन. सर BitAU पे अभी डायरेक्ट खरीद सकता हूँ ये साइट पे रजिस्टर करके, तो फिर बेचना होगा तब इनके साइट पे ही बेचना होगा या फिर नहीं सर, नहीं. कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप माइन कर सकते हैं. उसका बेचने का मॉडल होता है पीयर या एक्सचेंज. ये दोनों आपको फैसिलिटी. पीयर एक्सचेंज भी आपको पीयर ढूंढ के देती है. वो एक तरफ पीयर बाइंग ऑर्डर दिखाती है, दूसरी तरफ सेलिंग ऑर्डर दिखाती है. वहाँ उसके पीछे पीयर ही होते हैं, लोग ही होते हैं. तो अभी अगर खरीदना तो आप जिस रेट पे खरीदना चाहते हैं आप वहाँ पे बिड लगाइए जाके एमिरेक्स पे. तो उस रेट पे आपको जब भी वो उसके पैरेलल बायर सेलर आएगा तो आपका वो ऑर्डर मैच हो जाएगा. ओके जी. पवन जी ओके. ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन. ओके सर, ओके. थैंक यू एवरीवन. सो नाइस ऑफ यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. बाकी जो क्वेश्चन सर का था वो पवन जी के पास पहुंच जाएगा, तो मैं उसका आंसर थ्रू मेल आपको दिलवा दूंगा. नो इशू. थैंक यू ऑल. ओके, थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir.
पेड़ों नहीं छड़नी है थल्ले कोई चीज छुट्टी का तन्नू भी नोट से बच्चे सोने देना ही फिर थोड़ा थल्ले कोई चीज नहीं छुटनी ग्राउंड में देखो उधर